Hello, Assalamu alaikum, and welcome to the Pavilion. You're watching A Sports and 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. The news out of Perth, unfortunately, not a good one for Pakistani fans as Pakistan maintains its untouched record of winning a game in Australia in T20 format. And that's how it was today as well. Let's take a look at the match summary. This is how it went down. What looked like a low-scoring first innings. We thought, hey, this is within our grasp, not a problem. It's 130 that Zimbabwe put up. I think a lot of people thought that this was in the bag. Unfortunately, that's not how it was. Wasim there showing great promise, picking up those 4 wickets for 24 runs. And Haris Rauf also a great spell of 12 runs only in his 4 overs, picking up 1 wicket. Pakistan in response, well, it was Shan Masood who was giving that hope to the Pakistani batting. Other than that, it was just nothing but mediocre. And then Sikandar Raza, look at that, 3 for 25. You know, this guy has come a long way and he's turned out to be such a wonderful cricketer. Congratulations to Zimbabwe. They win this by 1 run. Let's take a look at the points table. This is how this group is now all set up and loaded. India right on top there with their 4 points. They've played 2 games, 1-2, and they sit at 4 points. South Africa is right behind them. Had that match not rained out, South Africa would have had 4 points most probably. But you have Zimbabwe now right next to South Africa with 3 points. Bangladesh also have 2 points. Pakistan and Netherlands have played 2 games each and have scored a big fat 0 on their points column. But this is how it is. With me in the studio, I've got the legends, the superstars, people who've served Pakistani cricket really well and are joining me here. Unfortunately, one of our celebrities, legends, is missing out. He's still not recovered. Hopefully, he'll be back here in the studios tomorrow. But with me in the studio is a young, dynamic Shoaib Malik. Assalamualaikum. Captain, head coach, and Mr. Dependable, Misbah ul Haq. Assalamualaikum. Captain, coach, and a toe-crushing, batsman terrorizing, very positive Waqar Younis. All right, let's get started जी. हमारा एक रिकॉर्ड है कि हम ऑस्ट्रेलिया में आज तक कोई भी T20 का मैच नहीं जीते और हमने आज वो मेंटेन किया अपना रिकॉर्ड. आई नो बहुत सारे लोग जो हैं वो गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, लेकिन देखें पॉजिटिव्स की तरफ हमें फोकस करना चाहिए. आज भी हम आखिरी गेंद तक मैच को जो है लेके गए हैं और लड़ते रहे हैं एंड तक. यू नो दैट्स व्हाट वी वांटेड. वी वांटेड आवर बॉयज टू फाइट all the way to the end. Last game as well against India, we fought all the way to the end. Today also we fought all the way to the end. Isn't that a great thing, Waqar? आई थिंक जो आपने गुस्से की बात की है, आई थिंक पूरे मुल्क को गुस्सा है और जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट आज हमने खेली है, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग. को उसमें कोई वैनम नज़र नहीं आया. इट वाज ordinary cricket. I don't know if they were overconfident or complexed or undercooked. I don't know, to be very honest, because आज जो मैच देखा है, इंडिया वाला an outstanding. हम लोग बड़ी प्रेज़ किया था जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली थी. It was just good to see that. लेकिन आज it was totally opposite. I know you praised them and you said कि जी we fought. We didn't fight. नहीं, लास्ट बॉल तक लेके गए. फाइट ही फाइट थी यार, इतनी फाइट की हमने. Don't do this right now. We were very ordinary. Let's put it that way. We were just we played terrible cricket. No real planning nazar aayi. शुरू से ही from the word go, पहले over से ही we were just lost. We didn't really know. We were just still maybe in the same shell that we're going to come out and just bowl them out and आगे करेंगे, डंडे उड़ जाएंगे, ये करेंगे. But in these sort of pitches where there's bounce, there's grass, there is a way of bowling which I don't think coaches ने या कप्तान ने या उसी वक्त you have to sort that out, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट आपने अभी गलतियां की थी जो बहुत ही हाईलाइट की गई थी. आपने एग्जैक्टली वही गलतियां की. आपने इतना अच्छा उनको स्टार्ट दे दिया कि things were just got out of hand. At one stage, I thought, oops, it might just go 160, 170. Yeah. Yes, they came back really well. That's T20 cricket. होता है T20 cricket में कि आपको, your period is bad and then you come out with really good. Haris Rauf was outstanding. Shadab bowled really well. But then it was very disappointing to see the way our openers batted. It was very disappointing to see, we were like,
we didn't really know which way to go. We were just hoping कि ये रन किसी तरीके से हो जाए, इधर भाग उधर भाग, गिर रहे हैं, रन आउट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं. सो I mean ये तो जिम्बाब्वे टीम थी. आई थिंक अगर कोई बड़ी टीम होती या साउथ अफ्रीका होती या और इंडिया वगैरह या कोई और होती तो वो हमें प्रॉब्ली इतना भी ना करीब आने देते जितना करीब है लुकिंग एट द विकेट. नहीं, लेकिन मैं तो फिर भी मेंटेन करता हूँ मिसबा कि पिछला मैच भी आखिरी बॉल तक हम लड़े और आज का मैच भी हम आखिरी बॉल तक लड़े. तो फाइटिंग स्पिरिट है, दिस इज द पॉजिटिविटी वी नीड टू फोकस ऑन. और जिस तरह वकार ने कहा कि हमने शुरू में जो है वो बड़े ओवर में जो है बड़े ओवर पिच गेंदें की, जो कि मैं आज तक नहीं समझ सका. मैंने तो नहीं खेली हुई इंटरनेशनल क्रिकेट, आप लोगों ने खेली हुई है, लेकिन आई थिंक हाफ द कंट्री कैन अंडरस्टैंड कि ऐसी पिच पर्थ के ऊपर जहाँ पे हमने देखा हुआ है कि बॉल क्या करती रही है, वहाँ पर जो लेंथ बॉल की जा रही थी, क्या वो दुरुस्त थी शुरू के ओवरों में? मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ज़िम्बाब्वे की स्ट्रेंथ्स को देखते हुए हमें सोचना चाहिए कि हाँ जी, हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं और नॉर्मली पिछला मैच ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने क्या बॉलिंग की है, उससे आपको एक क्लियर क्लू मिल रहा था कि भाई शॉर्ट बॉल पे वो स्ट्रगल किया उन्होंने. और हमने आज ऑलमोस्ट जब उनका स्टार्ट हो गया, उनके को 30 रन लग चुके थे, एक भी हमने शॉर्ट बॉल नहीं किया उनको. हालांकि हमें भी पता है कि वो उनके लिए ये प्रॉब्लम है. तो आई थिंक वो वकार भाई ने सही बिल्कुल पहले ही बात की कि हम लोग शायद इसमें थे कि आगे से करेंगे, स्विंग होगा, ऐसे आउट हो जाएंगे. तो इंग्लैंड की बॉलिंग भी हमने यहाँ पे देखी. यू हैव टू गेट द बैट्समैन अंडर प्रेशर. आप आते ही उसको एक आधा तुनका देते हैं, स्पेशली जब इस किस्म की आपके सामने बैटिंग लाइनअप होती है. उसके बाद आप आगे भी करते हैं, और आगे का मतलब ये नहीं कि आप बगैर पैर हिलाए उसको वॉलीज कर रहे हैं. शुरू के जो 3-4 चौके थे वो गिफ्ट थे, वो थ्रो डाउन्स थी. तो आई थिंक कि ये हमें रियलाइज़ करना है कि ये मिस्टेक्स आप इतनी क्रूशल स्टेज पे अगर बार बार करते रहेंगे वर्ल्ड कप में, और ज़िम्बाब्वे हमें पता है कि वो ऐसी टीम है कि वो लो स्कोर्स पे आपको फंसा लेते हैं, कि उनकी बॉलिंग साइड बड़ी ज़बरदस्त है. मैंने पिछले भी कल भी ये बात हमारी जब हुई है तो मैं यही कह रहा था कि ज़िम्बाब्वे के पास बैटिंग रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट उनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो सम टाइम 120, 25, 30 वाला मैच भी वो आपको फंसा लेते हैं. हम बहुत खेले हैं उनके साथ और हमेशा यही होता है. तो इस पे तो हमें अलर्ट आना चाहिए था. हमें जब हम आए थे अंदर, इस किस्म की पिच है, 4 फास्ट बॉलर हैं, लेट्स जस्ट गेट देम आउट एज अर्ली एज पॉसिबल, लोएस्ट टोटल पे. ऑब्वियसली हम सिर्फ बॉलिंग को नहीं कह सकते, उसके बाद बैटिंग भी हमने जिस तरीके से की, वो जो एक चीज़ नज़र आ रही है ना कि कॉन्फिडेंस, बिल्कुल हम पीछे ट्राई सीरीज़ जीत के आ रहे हैं, वहाँ पे हमने अच्छा 170 प्लस चेज़ किया, बट यहाँ पे हमें ऐसे लग रहा है कि हमें लगता है कि पता नहीं हम लोग 100 रन भी कर पाएंगे कि नहीं. वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल नज़र नहीं आ रहा. तो इसमें से निकलना पड़ेगा. स्टिल मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है इस वर्ल्ड कप में, स्टिल ओपन है. आपका साउथ अफ्रीका वाला मैच इंपॉर्टेंट है, अगले 2 मैच इंपॉर्टेंट है, बट जागना पड़ेगा उसके लिए. इस शेल से निकलना पड़ेगा अगर हमने कुछ करना है आगे. ये कौन सा शेल है शोएब जिसमें हम हैं इस वक्त? ये कौन सी नींद है जिससे मिसबा जागने की बात कर रहे हैं, जिसमें से हमें जागना चाहिए? ये वो वाला शेल है जहाँ से पेट्रोल मिलता है. ब्रांड का नाम नहीं ले सकते बाय द वे. देखिए, मुझे ये लगता है कि जो आपकी बॉलिंग थी आज, उसने बहुत अच्छा किया है, एक्सेप्ट फर्स्ट 2 ओवर्स. हमने उस दिन देखा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, तो फिन एलन ने फर्स्ट ओवर में ही मिचेल स्टार्क को काफ़ी सारे रन्स किए, बल्कि फर्स्ट 6 ओवर्स में काफ़ी सारे रन्स हो गए थे, लेकिन वहाँ से कोई कमबैक नहीं हो पाया. आज हमारे बॉलर्स ने कम बैक किया. जैसा स्टार्ट हुआ, फिर एक टाइम पे बीच में जाके उनकी पार्टनरशिप लगी सिकंदर रज़ा की और विलियम्स की. उसके बाद हमारे बॉलर्स ने विकेटें ली ऊपर नीचे. तो हम लोगों ने जहाँ पे आई वाज थिंकिंग कि ये द टोटल विल गो क्लोज टू 160, 170, सो वी पुल्ड देम बैक 130 पे. लेकिन आज जो टोटल था वो हमारे जो पहले 3 बैट्समैन हैं उनके लिए आइडियल था कि आपको जो जैसी मर्जी इनिंग्स खेलनी है आप वैसी खेलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. बिकॉज अगर हम रीसेंट पास्ट में देखें तो इनकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, बाबर की, रिजवान की, और अब रिसेंटली शान ने भी बहुत सारे रन्स करने शुरू कर दिए हैं. तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मैं नहीं समझता कि ये नीचे जो 5, 6, 7, 8 वाले हैं, ठीक है, इट्स अ टीम गेम,
बट ये आज वाला टोटल उन तक भी नहीं जाना चाहिए था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छी बात है, शुरू में ही ऊपर ही जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये ज़रा जिम्बाब्वे की बैटिंग को देखते हैं वकार, बड़ी अगर आप गौर से अगर स्कोर कार्ड देखते हैं तो देयर इज नथिंग आउटस्टैंडिंग देयर एक्सेप्ट फॉर शॉन विलियम्स के 31 रन जो हैं, उसके अलावा तो बाकी सारे 17, 18, 19 टाइप का माहौल है इसके अंदर सारे के सारा, एंड देयरफॉर इट हैज़ 130 एज अ टोटल ऑल टुगेदर, सो इट डजंट लुक कि ये बड़ा कोई डॉन्टिंग काम है, कोई बड़ा मुश्किल काम है। रिफ्लेक्ट्स गुड ऑन आवर बॉलिंग ऑफ कोर्स, स्पेशली हावर्ड हारिस रोव डिड एंड ऑल दैट, लेकिन ये फिर फर्स्ट 2 ओवर जी ये वो वाले ओवर हैं कि जहाँ पे उनको बहुत अच्छा मोमेंटम मिला था, और जिस पिच में बहुत ज़्यादा बाउंस हो, ये लास्ट कोई बॉलर जो है ऐसी बॉलिंग कर सकता है कि बिल्कुल मुंह में बॉल आ जाए, जो बिल्कुल पास हो, जैसे ये ऑन ड्राइव लगा। तो ये जो फर्स्ट 2 ओवर्स थे, ये वो ओवर्स थे जहाँ से मोमेंटम उनकी तरफ गया, और जब मोमेंटम गया तो वैसे ही जब शुरू में ऐसे चौके लगे टफ कंडीशंस में, तो जो आपके ड्रेसिंग रूम में बाकी के प्लेयर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने आने हैं बैटिंग करने के लिए, उनका वैसे ही कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। so डिफरेंस वाज कि उन्होंने 47 रन्स किए हैं पहले 6 ओवर्स में, और हमने 28 रन्स किए हैं, तो वो देखें एंड पे वही जो डिफरेंस था वो कवर ही नहीं हुआ। हम अगर बाद में अच्छी क्रिकेट खेलते तो शायद जिम्बाब्वे ने मिडिल ओवर्स में बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि पूर शॉट्स भी थी, और 5 आउट हुए उनके 7 से 15 ओवर्स में, पूरा वो मोमेंटम लूज़ कर दे। कुछ अच्छी बॉलिंग थी वसीम की, हारिस की, बहुत आला बॉलिंग की उन्होंने दोनों ने, बट आई थिंक कुछ शॉट्स भी ऐसी थी कि वहाँ पे बिल्कुल मोमेंटम लूज़ बिल्कुल किया। और वो जो पहला डिफरेंस क्रिएट हो गया 6 ओवर्स का, हम उसको ही कहीं वो बुनियाद ही गलत पड़ गई ना बुनियादी तौर पे। वो कार लेट मी कम टू यू, ये शुरू में पावर प्ले की बात कर रहे हैं कि जी हमने सिर्फ इतने डाउन किए, उन्होंने हमसे डबल रन्स किए। हम बहुत डिपेंड करते हैं अपने ओपनर्स के ऊपर, बड़ा प्राइड लेते हैं कि बाबर आजम, यू नो, किंग बाबर, एंड यू नो रिजवान द प्रिंस राइट नेक्स्ट टू हिम, एंड यू नो दे गिव अस दीज स्टार्ट्स एंड ऑल दैट एंड एवरीथिंग। What was going on? अगर आप इनकी बैटिंग देखें, जो हमने तो देख ली जिम्बाब्वे की बैटिंग, आपने देखा शुरू में कितनी इंटेंट के साथ है, हमारी तरफ क्या हो रहा था? हालांकि ये टोटल कोई इतना डॉन्टिंग टोटल नहीं था। एक नंबर 1 बैट्समैन है, एक नंबर 3 या 4 नंबर बैट्समैन है। बाबर थोड़ा सा स्लिप डाउन हुआ है, बट जब तक हम लोग पॉजिटिव नहीं खेलेंगे ऊपर से, ये देखें नथिंग, आप जब शॉट खेलने जाते हो, उनकी शॉट खेलने का तरीका और हमारे शॉट खेलने का, ये शॉटें प्रॉबली अगर आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे होगे तो ये ऑन दी आप लगती हैं, यहाँ पे नहीं लगती हैं। यहाँ पे यू जस्ट यू सी दैट दिस इज नो शॉट, नथिंग शॉट, एंड देन व्हेन दे गेव यू अ लूज बॉल यू आर आल्सो सॉर्ट ऑफ स्ट्रगलिंग, आप क्योंकि आप सर्च कर रहे हो बॉल को, आप पीछे बैक फुट पे खड़े हो, तो आई फील कि घबरा से गए हैं अचानक हमारे ओपनर्स। आई डोंट नो इफ दिस इज बिकॉज द बाउंस और घास और 1-2 फेलियर हो। इतनी सक्सेस देखी है in the last 2 years in दोनों ने ओपनर्स ने, you know they're still number 1, 2 after not playing that well in the last few games. तो उसके बाद अगर आप उसके बाद भी अगर आप पॉजिटिव नहीं खेलेंगे या आप चढ़ के नहीं खेलेंगे और आप इस डर के बगैर खेलना पड़ेगा कि मैं आउट हो जाऊंगा। मुझे आप जो दिखता है ओवर द ईयर्स, मैंने इतनी कोचिंग भी की है, मुझे जो नज़र आता है कि ऐसे लग रहा था कि जब मैं आउट हो गया तो की बनेगा टीम का, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग, that scary feeling, and that वो फिर क्या होता है, वो ट्रिकल डाउन करती है, वो सारे नीचे वाले बैट्समैन। आपने शान ने भी कितना किया, शान ने भी 30 रन, मेरे ख्याल कितने रन, 44 या 44 किए, तो उसकी भी इनिंग्स आप देखेंगे तो इट वाज स्क्रैची, कि देयर इज नो डोमिनेंस, चाहे 130 हो चाहे 200 रन हो, देयर इज अ वे टू प्ले T20 क्रिकेट, एंड आई डोंट थिंक वी आर प्लेइंग दैट cricket which we need to play. Yeah, that was Shan की inning। और आपके मोस्टली जो चौके हैं अगर आप देखेंगे ना, तो वो सारे पीछे ही आए हैं, वो भी edges हैं। There are like 70% of the boundaries came by edges. There are very few who would like really hit hard and gone for a 4. एक बड़ी चीज़ है, जब बाबर रिजवान के साथ ओपन करते हैं तो उनका एवरेज है 32.56, राइट। लेकिन जब वो रिजवान के साथ ओपन नहीं करते तो उनका एवरेज है 56.71। तो ये क्या डिफरेंस आ जाता है कि जब रिजवान उनके साथ ओपन नहीं कर रहे तो उनका एवरेज जो है वो 56.71 बहुत अच्छा पॉइंट है, और जब रिजवान कर रहे हैं तो 32.5। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये सवाल होल्ड करके रखें, लेकिन इस वक्त हमें एक वक्फा लेना है ऑन द पेविलियन। वापस आते हैं तो इस सवाल से ही यहाँ से सिलसिला आगे जो है वो चलाएंगे। आप देखते रहिए ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप।
Welcome back to the Pavilion. You're watching A Sports, 10 Sports, and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And those visuals of Zimbabwe's memorable victory. What a sensational game of cricket, all the way to the last ball. And then Zimbabwe winning that one. Just spectacular cricket by Zimbabwe. Full credit to them and to their fans for humbling Pakistan, the way it all went down. हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, शोएब मलिक ने एक पॉइंट निकाला था कि एवरेजेस के बारे में, कि जब बाबर रिजवान के साथ खेलते हैं तो उनकी एवरेज कुछ और होती है जब उनके I'll say it again. बाबर और रिजवान ने जब जब ओपन किया साथ में, उसमें बाबर की जो एवरेज है वो है 32.56, जिसमें दे हैव प्लेड 46 इनिंग्स, 40 इनिंग्स दे हैव प्लेड टुगेदर, और ये बाबर की एवरेज है. फिर बाबर की जो एवरेज है विदाउट रिजवान 43 इनिंग्स एंड हिज एवरेज इज 56.71. So it raises up. What does that mean? What does that translate into? What does that mean? I guess मुझे ये लगता है कि जो अब रोल रिजवान के पास है टू प्ले दैट एंकर इनिंग्स, तो आई गेस बाबर जो कैप्टन भी बना है, और उसके बाद आई एम श्योर यू हैव एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स. तो वो जो एक होता है ना कि मेरा स्ट्राइक रेट ऐसा होना चाहिए बीइंग अ कैप्टन, तो ये एक एलिमेंट हो सकता है कि जस्ट टू Adding pressure on Babar? वेल अगर इफ़ यू लुक एट द एवरेज, मे बी वो अपना जो उनका बॉक्स है जिसमें वो कंसिस्टेंट रहते हैं, उससे वो थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश हुई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी एवरेज जो है 32.56 है व्हेन ही ओपन्स विद रिजवान. What do you think, Misbah? देखिए सही कह रहा है मालिक, ये भी रीज़न हो सकती है और भी रीजंस हो सकती हैं. शायद मुझे लगता है कि उससे पहले जितनी भी क्रिकेट खेल रहा था पाकिस्तान, बाबर वाज ओपनिंग द इनिंग्स और यूएई में खेल रहे थे और 150 वाले मैच खेल रहे थे, तो वहाँ उसके पास ये लिबर्टी थी कि ठीक है, यू जस्ट प्ले द ओवर्स फ्रॉम वन साइड. हमें ज़रूरत ही नहीं है कि वो इतने ज़्यादा, जैसे ही आप वो 170, 80 और 200 वाले मैचों पे गए तो ऑब्वियसली यू हैव टू इम्प्रूव योर स्ट्राइक रेट ऑल्सो. तो वहाँ पे आके जब आप चांस लेते हैं तो फिर आप उसमें आउट भी होते हैं, तो शायद ये वजह. और कुछ भी हो सकता है मेंटली, समटाइम आप उस तरह की फॉर्म नहीं होती. मुझे लगता है कि पीछे थोड़ा सा इंग्लैंड सीरीज़ में भी बीच में ऑफ कलर हुआ बाबर, उस तरीके से रन्स नहीं है उससे. एशिया कप में भी स्क्रैची था. तो समटाइम्स ये भी होता है कि पीछे से जो आप फॉर्म आपकी चलती हुई आई है अभी रिसेंटली, उसकी वजह से भी इकट्ठी इनिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो एकदम आपकी एवरेज ड्रॉप हो जाती है. Okay, Bakar. अगर एवरेज मीन्स नथिंग टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यू नो T20 क्रिकेट में, या अगर आप मुझे टेस्ट मैच में कहेंगे या वनडे क्रिकेट में कहेंगे तो मैं कहूँगा येस गुड, यू नो ग्रेट एवरेज, 56 की एवरेज है. In T20 cricket, for me, it's the strike rate which I look at it. I look at it how कि अगर आप 3 ओवर भी खेलते हैं, what sort of start do you get? You know, and I don't think these two occasionally they have done it in subcontinent conditions or low slow pitches पे जहाँ पे conditions ऐसी होती हैं, they do give you that start which Pakistan look for. But when you go and where there are pitches are a little tricky, then strike rate matters. Then you have to take risks, you have to sacrifice कि okay विकेट जाती है जाए. आपने सारी टीमें देख रहे हैं यार, इसमें कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ. आप सारी टीमों को उठा के देख लें, they come hard at you. Quinton de Kock, Alex Hales, you know, ऑस्ट्रेलिया का आप ले लें, फिंच, वॉर्नर, I mean, even Zimbabwe batsmen today. India, Zimbabwe, everyone comes hard. हम क्या हैं, हम अगर आप देखेंगे आप ये बैट्समैन इन कंडीशन को जो ही देखते हैं कंडीशंस को, दे फील कि यू नो यू हैव टू स्टे आउट देयर तो ठीक है, यू नो, बट इफ यू डोंट स्कोर रन्स यू ऑलवेज लूजिंग द मैच. इवन इन द प्रीवियसली भी आप ये पहली ये 9 गेंदें हैं जो बाबर की थी आज की. देखिए अब जितने भी ये खेला है बॉल है, ये दिस इज, मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई वो होती है ना कि मैं आई एम जस्ट गोना गेट ऑन टॉप ऑफ हिम एंड आई एम गोना पुट हिम अंडर प्रेशर. क्रिकेट जो है ना, या दिस इज गुड, दिस वाज गुड, नाउ दिस वाज विद लॉट मोर वेनम, विद मोर एंगर ही हिट दैट वन, ठीक है ना. दिस वाज अ गुड डिलीवरी, फेयर इनफ. लेकिन ये है कि जब तक आप यू आर रेडी टू सॉर्ट ऑफ यू नो ready to not think about that if I lose wicket then what will happen to the team. This will happen to the team. On these conditions it will happen. You have to forget about it and play like a champion. Just be aggressive, and if you get out, you get out, you know. And if you give us good score, give good start, and then things will turn around. Like Zimbabwe, although Pakistani bowlers ne bowled really well later on and they pulled it back,
बट दैट स्टार्ट रियली पेड देम ऑफ एट द एंड ना, वो इस स्टार्ट की वजह से ही वो 130 पर पहुंचे हैं, वरना मुझे लगता था कि जिस तरह की पिच है, अगर आप अच्छी जगह पे बॉल करते ये 100 ना करते। शोएब, इंटरेस्टिंगली आपने ये जो बॉल देखी शुरू में, बल्कि मिसबा आपने भी देखी, 2-3 फुल टॉसेस भी थी जो कि बिल्कुल स्लॉट में थी, बट दे वर जस्ट लाइक जेंटली पुश टू द फील्डर ऑन मिड ऑन, एंड यू नो व्हाट क्या ऐसा होता है कि मेंटली आप ऐसे फिक्रमंद हो जाते हैं कि वो गेंद जो कि जनरली कोई भी किसी और मुल्क का बैट्समैन जो है वो आराम से क्लियर करेगा उसको फॉर अ बाउंड्री, एंड यू जस्ट कांट इवन कनेक्ट दैट वन? देखिए, जब आपको श्योरिटी ना हो आपके अपने माइंड में तो ये चीज़ होती है, लेकिन ये जो बाबर ये बॉल्स बीट हो रहे हैं ना, ये देखें, ये फुल टॉस था, मतलब समटाइम आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि यार वो फुल टॉस भी आ जाएगी ऐसी कंडीशन में। और दूसरा, जैसे वकार भाई ने कहा कि जब आपका इंटेंट होता है ना कि मैं जो है ना पढ़ूंगा बॉलर्स को, तो उसमें ये होता है कि जब आपको बैड बॉल्स मिलते हैं, यू मेक श्योर यू प्लेस देम इन द गैप टू गेट रन्स। मुझे बाबर का थोड़ा सा ये लगता है कि जैसे वो प्लांट करते हैं ना अपनी दोनों टांगें और उसके बाद वो हाथों से खेलते हैं, जहाँ पे इवन बॉल आएगा उसके लिए वो टेक्निक सही है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस आएगा या थोड़ी सी सीम मूवमेंट आएगी, वहाँ पे वो तंगी ज़रूर होती है। ये उनकी स्ट्रेंथ भी है, बट ये है कि अब डिफ़िकल्ट कंडीशंस है तो आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। यू असेस द कंडीशंस एंड देन प्ले अकॉर्डिंगली। तो मुझे ये प्लीज़ मलिक, मैं आई जस्ट वांटेड टू बैक योर थिंग व्हाट यू आर सेइंग कि कोई इंटेंट की जो बात है ना, वो हम लोग क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि यार चढ़ के खेल, यू नो, बॉल के ऊपर चढ़ के खेलो। और जितने भी आपने देखे ना, it was like बल्ले चबाज जाए यार, शायद बल्ले चबाज जाए, that sort of attitude। और वो जैसे खेले हैं वो उनका गेम है, वो मतलब आज पहला दिन ऐसा नहीं था कि वो इसी तरह खेलते हैं। रिजवान और बाबर, ये उनका गेम है। हाँ, कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके लिए उनको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी कि इस पे हम कैसे रन बना सकते हैं, क्योंकि दूसरों ने देखा जैसे ही बाउंस आता है वो क्या करते हैं, अगर तेज आ रहा है बॉल तो वो अपने आप को रूम दिया जी, ठीक है, जैसे आयरलैंड ने अगेंस्ट इंग्लैंड खेला, तो यू मतलब कोई चेंज करते हैं आप अपनी जो है ना कंडीशंस को देखने के बाद, लेकिन वो चेंजिंग कुछ मुझे नज़र नहीं आई दोनों के स्टाइल में, दोनों के। और फिर जो जिस तरीके से आउट हुए मिसबा, व्हाट डू यू थिंक वाज गोइंग ऑन? बाबर का आपने देखा एज लगा, आई मीन I don't know, how do you decipher this? I think that was a good ball. जिस बॉल पे वो आउट हुआ, बीच में बहुत अच्छी लेंथ पे बॉल था और मिडल से बाहर निकला, सो उसने बल्ला बंद किया है और वो बॉल ये रिजवान की बैटिंग है, आप देख सकते हैं। रिजवान ने लुक, सो वाओ, दैट वाज अ रियली गुड डिलीवरी। क्या खूबसूरत लेंथ बॉल की है, किस लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की है। मुझे ये लगता है ये डबल माइंडेड हुए हैं रिजवान, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ है ऑन साइड पे खेलना, तो अब वो थोड़ा सा बॉलर्स उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप कर रहे हैं, तो वो डबल माइंडेड है अपने उसमें। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक तो प्रेशर बिल्ड किया है बॉलर्स ने, वो एग्जैक्टली वो जो हम 6 मीटर से 8 मीटर के इन बिटवीन जो लेंथ है वहाँ पे, और दोनों लंबे बॉलर हैं उनके, वहाँ पे उन्होंने पिच किया बॉल, हल्का सा बॉल हिल भी रहा है, एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने जोन में बॉल मिले, वहाँ बॉल नहीं मिल रहा। अब इसको आप एक तरीके से टैकल कर सकते हैं, या तो 2 तरीके हैं, या तो यही है कि हाँ वेट करें गेंद का, लेकिन T20 क्रिकेट है, यू हैव टू स्कोर रन्स। तो दूसरा तरीका ये है, जैसे मलिक कह रहा है कि यार आप या तो थोड़ा सा रूम देते हैं अपने आप को, या फिर आप एक आधा प्रेशर अंडर प्रेशर करने के लिए निकल के मारते हैं कोई शॉट, ताकि बॉलर को वो लेंथ छोड़नी पड़े। अदरवाइज़ जो डिसिप्लिन बॉलर हैं, स्पेशली इनके दोनों नगारवा हैं और ये मुजरबानी, ये वहाँ जिम्बाब्वे में भी जब फ्लैट पिचेस पे और पाकिस्तान भी आए थे तो ये वो जगह नहीं छोड़ते। काउंटी खेल के आए हैं, कंसिस्टेंटली पता है कि मैं यहाँ पे अपनी हाइट का फ़ायदा उठा के यहाँ, ना वो ड्राइविंग लेंथ होती है ना आप उसको कट पुल मार सकते हैं। अब आपने ख़ुद अगर वो लेंथ क्रिएट करनी है तो यू हैव टू डू समथिंग, आगे जाएं, पीछे हो, मूव करें, थोड़ा सा पीछे हटें, और वो हम जिस इस टाइम कंडीशन में है, जिस सिचुएशन में है मेंटली, वो हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों थोड़े से रन्स नहीं हुए तो ऑफ कलर है। मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ। हम जब टेस्ट क्रिकेट या 4-डे क्रिकेट खेलते हैं तो कोई स्पिनर आता है बॉल करने के लिए, तो हम एज अ बैटर कोशिश हमारी ये होती है कि यार इसकी लाइन नहीं बनने देनी, क्योंकि जितना हम बैट पैड खेलेंगे वो हम पे हावी होता जाएगा, और जो क्लोजिंग फील्डर्स है वो चांसेस है वहाँ पे आउट होने का। सही। तो सेम गोज़ फॉर दीज कंडीशंस एज वेल, कि
कि आप जो है कि अगर एक बॉलर को हेल्प मिल रही है, पेसर को, जो मिसबा भाई ने बोला 6 से 8 मीटर वाली पे, और वहाँ पे आप तंग हो रहे हो, अब आपको कुछ करना है क्योंकि 20 ओवर है और आपके सामने टारगेट है टू अचीव, तो अब आपने कुछ करना है। आप रूम दो, आप आगे जाओ, आप विकेटें कवर करके बीच में जाओ ऑन साइड पे खेलने के लिए, जहाँ पे आप स्ट्रांग हो। जो आपके शॉट्स हैं, जो पेट शॉट्स हैं, अगर आपको अलोंग द ग्राउंड नहीं शॉट मिल रहा, नहीं रन्स मिल रहे हैं, तो फिर आपको इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि देखे नहीं गए आज। ऑलराइट, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर, मगर लेते हैं एक छोटा सा वक्त राइट ऑन द पिविलियन। सी यू ऑन द अदर साइड। कीप वाचिंग ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स आर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप वेयर इन पर्थ Pakistan has been stunned by Zimbabwe. A wonderful game of cricket all the way to the last ball, fighting game of cricket. And we're talking about that match. I've got with me in the studios Shoaib Malik, Misbah ul Haq and Waqar Yunus, who are absolutely thrilled and pleased by the positives of the game from both sides. हम लोग बैटिंग के ऊपर बात कर रहे थे पाकिस्तान की, और इंटेंट की बात कर रहे थे, ओपनर्स की। वकार, आप उसके ऊपर यू वर टॉकिंग अबाउट इट, बट मैं पिछले 2 साल से बात कर रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। सही। पिछले 2 साल से इवन ऑन पिचेस विच वर फ्लैट, मैं वहाँ भी यही कहता था कि हमारा जो स्टाइल ऑफ प्ले है ना, जो T20 क्रिकेट का, वी आर वे बिहाइंड। शायद अब सब लोग मुझे कहेंगे कि यार नाउ यू सेइंग इट बिकॉज वी डोंट नो। आई हैव सेड इट टू द क्रिकेट कमेटी, आई हैव सेड इट टू द क्रिकेट बोर्ड, I've said it everywhere. I go and watch cricket everywhere. I talk about cricket, commentary करता हूँ. So मुझे हमेशा से ही था कि यार ये स्टाइल हमें कहीं ना कहीं मरवाएगा जहाँ कंडीशन सूट नहीं करेंगी। इस स्टाइल का नाम क्या है? I don't know what style is that, but this is not. अभी मैंने फखर यही बोला ना कि आप look around the world कि वो कैसे खेल रहे हैं और हम कैसे खेल रहे हैं। कंडीशंस को तो कम से कम हमें उस तरह खेलनी चाहिए जिस तरह बाकी टीमें खेल रही हैं। आर दे केपेबल कि वैसा ही खेल सके जैसे आपने 2-4 लोगों का नाम लिया जो हमारे ओपनर्स हैं, और यू हैव अ डिफरेंट थॉट? I don't know, to be honest. I don't want to say too much on that, but because they're number 1, number 4, I mean you can't even falter that. लेकिन conditions जब आती हैं तो you should be able to change the mode of your game if you want to play, if you want to be great. They are great cricketers, they have done well for Pakistan, but you should be able to change your game according to the situation given to you. So, Australia, आपको सबको मालूम था जाने से भी पहले कि the pitches are going to be bouncy, then you should have prepared it. This is not the preparation. 25 साल में ना मेरे करियर में मैंने एक ही चीज़ सीखी है जो मेरी सक्सेस की बेस्ट चीज़ है। ऑलवेज प्ले फॉर द टीम। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन एक बात ये है कि हम सारी बातें कर रहे हैं कि स्ट्राइक रेट्स और ये और वो, 7 विकेटें आपके हाथ में और 39 बॉलों पे आपने 43 करना हो, तो इज इट अ मैटर ऑफ स्ट्राइक रेट्स देन? इट्स नॉट द मैटर ऑफ, असल मैटर ये है कि आप ने जो मिडिल ऑर्डर लेके गए हैं वो सारा वी नॉट टॉकिंग अबाउट दी के इतने गेंद रहते थे और इतने गेंद हमें रन करने थे। वी नॉट टॉकिंग दैट, व्हाट वी आर टॉकिंग हियर इज द स्टाइल ऑफ प्ले। Yeah, you're right. उसी पे आ रहे हैं। Misbah actually I think is coming to that point. Go ahead, Misbah. You said we had 7 wickets in hand और 43 मसला ये है कि हम गलत डिस्कशन गलत टाइम पे कर रहे हैं ना। हम ये मैच कहाँ हारे हैं? 39 बॉलों पर अगर हमने 43 करना, 7 विकेटें हमारे हाथ में हैं और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं और हम नहीं कर सकते, तो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ जस्ट ट्राइंग टू स्कोर 65 या 70 रन इन द फर्स्ट 6 ओवर्स? वो आपके वहाँ के जो बैट्समैन वो ऐसे ही खेलेंगे जब आपकी नीचे ये हालत होगी, और ये हालत कितने अरसे से है, अब क्यों है और ऊपर क्यों नहीं रिप्लेस कर पा रहा है? फिर सिस्टम की बात आ जाती है। व्हाट यू हैव, आपके पास प्लेयर कौन से हैं? नीचे कोई ऐसे प्लेयर हैं आपके जिन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ है या इस तरह की परफॉर्मेंसेस की हुई हैं? नहीं हैं, तो फिर यही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, हमने जो इनिशियली हमारे पे प्रेशर क्यों, हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले कितने मैचों में एशिया कप से लेके यू आर अंडर प्रेशर, आपका मिडिल ऑर्डर रन्स नहीं कर रहा था, बट स्टिल वी कंटिन्यूड विद द सेम मिडिल ऑर्डर। अब हम खुशदिल भी वहाँ पे हैं, आसिफ भी वहाँ पे हैं, एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि हम इनको खिलाएं। हमें समझ नहीं आ रही, हम फ़ख्र की तरफ देख रहे हैं।
दूसरा हमने क्या किया है कि हम अभी भी 5 फास्ट बॉलर होते हुए भी हमने हाफ कुक शाहीन को डाल दिया कि जो नज़र आ रहा है कि अभी वो उस रिदम में नहीं है, उस तरीके से उनसे बॉलिंग नहीं हो रही। तो मतलब जब प्लानिंग ये जब आपने हम अच्छा शाहीन वाली बात अच्छी की। फ़खर ज़मान हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि फ़खर इंजर्ड था, अभी तक उसने प्रैक्टिस अब शुरू किया, बट Okay, उसको भी Mr. हमने we'll go one स्क्वाड by में one. We can't. Let's just go to Shaheen के ओवर की बात कर रहे हैं. I understand that you want to summarize the whole thing, but we have to go, bit by bit. Let's take a look at G Shweb. You want to add something? जी बिल्कुल, जैसे मिसबा भाई ने कहा कि 39 बॉल्स पे कितने रन्स चाहिए थे, 7 विकेटें थी। 46 43, 46 या अच्छा, 43. अब मेरा यहाँ क्वेश्चन है वो ये है कि वो चेज क्यों नहीं हुए। अब उसका आंसर ये है कि जितने भी मैचेस आपने जीते हैं वो आप बाउंड्रीज के साथ जीतते हो। जहाँ आप इवन पिच पे खेल रहे हो, जहाँ पे कंडीशंस आसान हो तो आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसलिए ये मसला हुआ कि वही बात आएगी स्ट्राइक रोटेशन पे, ये रन्स जो हैं ये भाग के करने वाले रन्स हैं, ये मतलब फील्डर्स भी उनके बिल्कुल पीछे आपकी थे। बात समझ गया। हम मिसबा ने अभी पॉइंट किया शाहीन का वकार। ये शाहीन शाह अफरीदी का पहला ओवर देखते हैं आज का, ये उनका पहला ओवर था। एंड देन यू गाइस आर द एक्सपर्ट्स, यू टेल हिम, इज ही फिट? Look, of course he's fit. That's why he's bowling. Maybe he's not match fit. There's a Right, difference that's between okay. fitness. Explain that difference to us. The difference between match fitness and just being fit is totally different. आपको बॉलिंग कर रहे हो, आपकी पेस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है. You come down 10K or maybe more at times. And he was still in the same zone which he was in against India, trying to swing the ball early on, bowling too full. उसने पिच को रीड नहीं किया कि इवन 132 या 134 पे भी अगर इसकी लेंथ ठीक होती या थोड़ा खिंचे हुए बॉल बैक ऑफ द लेंथ बॉल करता, ही वुड हैव बीन अनप्लेएबल. सो ये जो अर्ली ऑन रन्स लीक हुए हैं पहले ओवर में या इवन 2 ओवर, ये देखें, दिस इज द लेंथ वी नीड This टू is बॉल the ऑन length we दिस. needed. Correct. लेकिन बात वही है वकार भाई के वाई हम इतनी हमें जल्दी इतनी क्या थी कि जो बॉलर हमारा 146 पे बॉल करता है वो अभी उसकी ये आप जो स्पीड की एवरेज बात कर रहे हैं, 134 कंपैरिजन आपकी स्क्रीन पे ले आते हैं जो मिसबा जो बात कर रहे हैं। ये जरा देख लीजिए पिछले साल के वर्ल्ड कप का और इस साल के वर्ल्ड कप का डिफरेंस जो है एवरेज स्पीड का शाहीन शाह अफरीदी का, वाज़े तौर पे ये तो एक एवरेज है ना कि एवरेज उनके डिलीवरीज की। नॉर्मली पहले ओवर में शाहीन टचेस 145 146 और उस पे फुल टॉस भी आपको जो आउट किए थे इंडिया के अगेंस्ट यॉर्कर्स पे, उस पे वो बॉल आपको ले जाता फुल लेंथ, क्योंकि जितनी देर में आप ब्रेक करते हैं उतनी देर में बॉल सीधा भी हो, हल्का से भी डिप करे या स्विंग करे, उतनी देर में आपके डिफेंस को बीट कर जाता है। तो आई थिंक मैं तो बहुत वरीड हूँ उसके लिए कि इस सिचुएशन में ही इज़ प्लेइंग, और हमें पता है जितना वो हमारे लिए एक एसेट है हर फॉर्मेट में। और अभी हमें अगर हम इतनी उस मजबूरी है हमें कि हम उसको खिला रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई 19-20 हो गया तो मतलब हमने लॉन्गर रन में देखना चाहिए। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो वाई वी आर टेकिंग दैट चांस, जबकि हमारे पास हसनैन है जो 150 पे बॉल करता है और वो फिट है, तो फिर हमें ऐसी कौन सी वो है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। एक पॉइंट है यहाँ पे, शाहीन के साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि वो इंजरी से आगे फ़ौरन खेले हैं। रिक्वायरमेंट भी थी जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, वी ऑल नो कि क्या टैलेंट है उनके पास और क्या परफॉर्मेंसेज वो करते हुए आ रहे हैं। मुझे लगता है इनएक्सपीरियंस, उनको किसी को हमारे मैनेजमेंट में से उसके साथ बात करनी चाहिए थी, उसको ये बोलना चाहिए था कि अगर सेम पेस नहीं आ रही, स्विंग नहीं हो रहा, तो अपनी लाइन को थोड़ा सा पीछे ले आओ, 6 से 8 मीटर पे ले आओ, ताकि जब आपका रिदम वापस आ जाए, यू आर फुली फिट, फिर आप वो अपनी जो ओल्ड एग्जीक्यूशन है आप उस पर जा सकते हो। तो मुझे ये मलिक सारी बातें ठीक है, मजबूरी हमें क्या है कि हमने वर्ल्ड कप के मैचेस जो इम्पोर्टेंट मैचेस उनके दरमियान ही रिदम वापस लाना है। वो तो अब हो गया ना, अब उसका सोल्यूशन है आगे के लिए कि वो ये है कि आप उससे अब उसको समझ आएगी, अल्लाह ना करे उसके साथ ऐसी पोजीशन या सिचुएशन नेक्स्ट टाइम आए कि वो इंजर्ड हो या कुछ हो, बट आई एम श्योर उसने खुद रियलाइज़ किया होगा कि हाँ मैं अपनी लाइन को थोड़ा सा पीछे ला सकता था, क्योंकि मैं वैसा फिट नहीं हूँ, मेरे पास वैसी पेस नहीं है, बॉल स्विंग नहीं हो रहा। आपको जल्दी रियलाइज़ करना है और आपको उसका इम्प्लीमेंट, जिसे प्लान ए और प्लान बी, वो यही चीज़ें हैं कि जब आपकी एक चीज़ एग्जीक्यूट ना हो रही हो तो आपको कुछ चेंज लानी है अपने अंदर। ये लेकिन मिसबा का सवाल बड़ा अच्छा है वकार, क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि उसने इतना परफॉर्म किया हुआ है, एंड वी ऑल थॉट दैट वी हैव रिलाई ऑन हिम, उसने हमें ब्रेक थ्रूज ऐसे जैसे दिए हुए हैं और जो हम बड़े मैचेस जीते हैं उसकी परफॉर्मेंस से जीते हुए हैं, एंड वी ऑल थॉट
and the selectors and the cricket board thought that, you know, he'll be back and he will do the same again with India, against you know, Zimbabwe, वो तो खा जाएगा. I think that's where they missed the trick, because bowling एक ऐसा department है, bowling you need to bowl. मैं हसन अली की example देता हूँ. जब वो हसन अली when he got injured, you know, he struggled for a long period, and then he came back and came back a bit too early, and he struggled. He didn't know what to do. Then we sent him back and we said, go and play first class cricket. He played about 8-9 first class games and he came like a champion. Yes, I remember that. He came and he played here against South Africa. He picked up 10 wickets there, 5 wickets there, 5 wickets in South Africa. West Indies he bowled well. So I think जब तक bowling fitness नहीं होती है ना, then you are going to struggle with that swing, क्योंकि clear नजर आ रहा है कि he's just trying hard. जब आप hard try करते हो तो जो आपके जो नेचुरल बायोमैकेनिक्स होते हैं ना बॉलिंग के, जो वो कहीं ना कहीं से आप ट्रिगर करते हैं, तो वो जो हम देखते थे ना जो इन स्विंगर होता है वो इसीलिए नहीं हो रहा, बिकॉज हिज रिस्ट इज ब्रेकिंग, इज गोइंग दैट वे रादर देन कमिंग डाउन नाइस एंड स्ट्रेट. देखिए मेरा सिर्फ सिंपल सा एक जो कंसर्न है वो ये है कि अगर हमने रीहैब उसने जहाँ पे भी किया, जहाँ पे भी बॉलिंग कर रहा था, तो हमने कैसे चेक किया उसको कि वो 100 क्या वर्ल्ड कप में 100% फिट हमारा बॉलर शाहीन हमें चाहिए या हमें सिर्फ शाहीन नाम चाहिए. मुझे लगता है कि ये उसके साथ भी ज़्यादती है, और अगर वो 100% नहीं है तो वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाएगा. और ये तो टीम के साथ भी ज़्यादती है. बिल्कुल हाँ, किसी के साथ बगैर आप डाल देंगे, अगर वो फेल हो गया तो हम यहाँ बैठ के उसको देख रहे होंगे. किसी के साथ सही बात है. सिर्फ हम नहीं, बहुत पूरी कौम जो है फिर वो होती है ना. हमने चीज़ें फिक्स ही नहीं की. हमने ये किया ही नहीं कि यार जो इन्फॉर्म लोग हैं हम कुछ उनको ले जाएं. जैसी कंडीशंस में आप खेलने जा रहे हैं, किसने लेकर जाना था भाई? उस हिसाब से जो है हम प्लेयर्स जो हैं उनको ले जाएं. किसने लेकर जाना था? जिन्होंने भेजी ये थी. सिलेक्टर होते हैं. then I don't know then what to of say course- to that. मतलब, you know, every time Pakistan has a situation like we're confronted with right when you now, have we go so- back to this whole discussion again and again and again, and somehow now. Fakar, I was in New Zealand, Yeah. and I did speak to all of them. I spoke to the medical panel also. I spoke to the doctor who's come from Australia. He was there, and I was concerned because I wanted to see him do really well, and I thought he will come to New Zealand, play at least 3 games there, 2 warm-up games, then at least he'll get into his rhythm. And my answer was given even by the captain also, कि नहीं वो ठीक जा रहा है, and he's going to be fit there. उतने है ने 2 warm-up में, and I deep down knew that the 2 matches अल्लाह करे कि वो ठीक हो और हो जाए. But I always had this feeling कि उसका जो match fitness, जो match वाला rhythm है, वो कहाँ से आएगा? So I asked them, I said, why didn't you call them? Why don't you call him here in New Zealand while he's bowling there in England in the nets or indoor or wherever? He should come here and you guys should see, not the guy who was sitting in England or trying to get him fit. He's not a cricketer. He's probably the doctors or the panel, whoever is just doing the rehab. Yeah. So you need to see as a captain, you need to see as a coach, you need to see as a management. जो आपके physios हैं, they should have seen him beforehand. जब वो न्यूजीलैंड में था, play him couple of matches and then take him. You know, I know we are lost and we are talking all this. No, we're hurt, of course. But I never wanted to say all this, but this was the case, and I was very, very hurt. Okay, I'm look, as a Pakistani cricketing fan, and as Pakistanis, everybody is upset right now because look, this should have been a game that should have been in the bag, and we should have had 2 points on that. It's not. And it is not basically the reason. ये तो हम के ये reason है. Obviously हमारी जो हम तो वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें आपके सामने आ रही है, ओवरऑल जाहिर है हमने बैटिंग बहुत जिसको कहते हैं कि poor batting. Hold this thought, Misbah, because we're going to talk about the batting when we come back from this break. You're watching The Pavilion, and this is A Sports and 10 Sports. See you on the other side. Welcome back to The Pavilion. I'm Fakhri Alam. You're watching A Sports and Sports and the Airwise app. And our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup continues. And some of you will be watching us on YouTube. Thank you for watching and keep watching. With me in the studios, I've got Shoaib Malik, Misbah Haq, Waqar Yunus. Wasim is not with us. He's not feeling well, but hopefully he'll be joining us tomorrow morning. The news out of Perth, bad news for Pakistani fans, angry Pakistani fans right now, I assume. And Zimbabwe, well done, congratulations. हम लोग बात कर रहे थे बैटिंग के हवाले से पाकिस्तान की.
Let's talk about Shadab's innings today. बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मिसबा शॉट खेला, बड़ा अच्छा शॉट खेला, 6 मारा एक इतना अच्छा, पर उसके बाद was it necessary to go after? ये ज़रा देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है, ज़रा आप देखें, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से शादाब ने खेली थी. Nice shot there. हम सब समझे एक सेकंड के लिए शायद कैच हो जाएगा, but it cleared the fence really nice. I think that 39-43 टाइम आपको थोड़ा सा सिचुएशन को असेस करना ज़रूरी है. ये जब थोड़ी बैट्समैन वाली मेंटालिटी, आप जब मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो आपको थोड़ा कंडीशंस को भी देखना है और ओवरऑल सिचुएशन को भी देखना है. जो मलिक ने बात किया कि जब बड़ी ग्राउंड होती है एंड यू नो कि यार यहाँ पे 8 एंड ओवर इज़ नॉट एन इशू, मैं आराम से, और 2 हो रहे थे, आप जहाँ भी गैप में मार रहे थे सर्कल से बाहर वो 2 दे रहे थे. यानी जिम्बाब्वे ने पूरी कोशिश की है फील्डिंग में कि वो पाकिस्तान को बॉलिंग में भी एंड पे वो भी अंडर प्रेशर थे, चांस दे रहे थे, इवन हाथों से दुबके हुए. लेकिन हम लोग शायद उस वक्त तक भी मुझे लगता है कि इस उसमें थे कि कोई मसला नहीं है, 7 विकेटें हाथ में है, आराम से जो बंदा सेट हो गया, एक शॉट आपकी लग गई है, आपकी पार्टनरशिप हो गई है, ख़त्म करें उस गेम को. आप क्यों पीछे के लिए छोड़ रहे हैं? ऐसी वैसी शॉट आप क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है प्रेशर में है तो उसको मैच को ख़त्म करके निकाल सकते हैं. क्या हुआ शोएब, आपको लगता है डिड ही गेट कैरिड अवे और डिड ही गेट अंडर टू मच प्रेशर कि मैंने एक छक्का मार दिया, अब एक और मारना ज़रूरी है? क्या व्हाट गोज़ थ्रू ए बैट्समैन's माइंड? आई थिंक शादाब के केस में अगर हम देखें तो शादाब खेलते ही ऐसे हैं. वो जितने मर्जी बॉल्स चाहिए हो, रन अप बॉल चाहिए हो या जैसी मर्जी एवरेज चाहिए हो, वो उनका गेम ही ऐसा है और उन्होंने वही अपना गेम खेला. एक जब छक्का लगा तो वो दूसरा भी मारने गए, वो उनका गेम है, वो वैसे ही है. मेरा यहाँ पॉइंट ये है कि जिस नंबर पे आपने हैदर अली को खिलाया है उस पे खुशदिल शाह और आसिफ अली, इनके अलावा वो आपके वो हैं पावर हिटर है. ठीक है, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, हो जाता है, लेकिन वो आपके पावर हिटर हैं. वो इस नंबर के लिए I thought Haider was also power hitter. नहीं, हैदर जो है वो ऊपर के नंबर पे खेलता है. देखें, उस बंदे के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैच फिनिश करना बहुत मुश्किल होगा कि जो जिसको उस नंबर पे खेलने का आइडिया ही ना हो. ये ज़रा वकार हैदर का आप देखते हैं, पिछले मैच में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की. आज भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हैदर के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी कमेंट्स कर रहे हैं. व्हाट वाज गोइंग ऑन हियर? ज़रा पूरा देखें दोबारा एक दफ़ा. एक तो पहली बात ये है कि सिकंदर रज़ा, व्हाट अ मैन विद अ गोल्डन आर्म. Yeah, nervous, very nervous. He had no clue what he was doing. He just played it on the onside, closed the face of the bat. You know, जब आप ऑन साइड आते ही मार देते हैं, सीधा बॉल था, नथिंग, देयर वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ डिलीवरी. और मलिक पिछले काफ़ी दिनों से इस पे डेमो भी दे रहा है, मास्टर क्लास भी किया है कि यू डोंट पुट लेग इन फ्रंट एंड देन बिकॉज जब आपकी टांग बॉल की लाइन में आ जाती है, बॉल यहाँ गिरे, अगर आपका पैर यहाँ है, दैट मीन्स यू हैव टू कम अराउंड इट टू प्ले दैट. दैट मीन्स यू आर गोना क्लोज द फेस ऑफ द बैट. सो द फुट हैज़ टू लैंड इनसाइड द बॉल, अंदर की साइड पे होगा ताकि बल्ले को आपको चांस मिले उसको बॉल को खेलने के लिए. आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ नर्वसनेस देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि रन नहीं हुए. पिछले मैच में भी ख़राब परफॉर्मेंस है. पिछले मैच में क्या, जितने भी अभी अरसे से मैचेस खेले हैं, हार्डली स्कोर्ड रन. सो उस तरह के सिचुएशन में आप जब इतने नर्वस होते हैं, सेम गोल आसिफ के साथ भी यही हो रहा. सो इट्स जस्ट द नर्वसनेस, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. मेरा पॉइंट हमेशा से वही था और मैं उस पर कायम रहूँगा कि देखें, डिफ़िकल्ट हैं कंडीशंस, और जब तक आपका बंदा थोड़े से बॉल्स नहीं खेला होगा, उसके लिए एकदम जाके क्रंच सिचुएशन में जितवाना वो इजी नहीं होगा. हमने उसके नवाज़ के केस में ये देखा है कि उसने फिनिश किए हैं मैचेस, लेकिन हमने शादाब के केस में नहीं देखा कि उसने मैचेस फिनिश किए हों. हाँ, छोटे छोटे हम लोगों ने ग्लिम्स देखे हैं कि उसके जो उसने 2-3 छक्के मार दिया आके. देखें, ये काम है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का. If you're playing as a finisher, ये उनका I tell you काम something है. today, if anything, Shoaib Malik, you were perhaps missed in that middle order big time today. Today you should have been there. सीधी सी बात है. I don't know what to say, how to say it. I don't know. I hope कि लोग इसको कोई वो ना ले लें, political angle ना ले लें, ये वगैरह. हमारी गलती है कि हमें फिर इसको कल भेज देना चाहिए था. हाँ, तुम्हें कल फ्लाइट पे भेज देना चाहिए था. अब ये एक सवाल है मेरा, आपने अभी इफ्तिखार का नाम लिया. मैं मिसबा आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. इफ्तिखार को हमने उस दिन सुना जब इंडिया वाला मैच हारे तो ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम ने कहा कि इफ्तिखार यू आर माई मैच विनर, ठीक है ना. और उसके बाद फिर हमने आज वाले मैच में देखा कि इफ्तिखार को बॉलिंग नहीं कराई.
सॉरी नवाज, माई अपॉलॉजीज, नवाज यूर माई मैच विनर, आई अपॉलॉजाइज। एंड उसको आज बॉलिंग नहीं कराई नवाज को। डोंट यू थिंक ये दिस वुड हैव बीन अ गुड प्लेस जिम्बाब्वे के अगेंस्ट के आप नवाज को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहे थे दोबारा उसके बॉल के साथ? एंड देन ऑफ कोर्स अनदर थिंग दैट आईड लाइक टू आस्क यू, मिस इसी का बैकअप है दूसरा कि इफ्तिखार को भी बॉलिंग नहीं दी जबकि 2 खब्बे खेल रहे थे एक टाइम पे। अब कई दफ़ा हम पहले से चीज़ें देख लेते हैं कि अच्छा पर्थ की पिच है, पेस है, 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं तो उनको बॉलिंग करानी है। आई थिंक कि जिम्बाब्वे के भी 4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, तो बट आप जब चॉप एंड चेंज थोड़ा बहुत कहीं मिक्स करते हैं बॉलर्स को, तो उसमें रिदम नहीं बनता बैट्समैन का। सडनली ऑफ स्पिनर ने आके 1 ओवर कर दिया या नवाज ने आके कर दिया, वहाँ पे कई दफ़ा ये होता है कि बैट्समैन डिफरेंट खेलने चला जाता है, आपको विकेट मिल जाती है। आप देखें आज उनको भी ज़रूरत नहीं थी लेकिन उन्होंने अपने लेग स्पिनर को भी बॉलिंग कराई। मैं आपको उधर लगा था कि क्रेग इरविन ने बड़ी चेंजेस की आज, बड़ी इंटेलिजेंट चेंजेस बॉलिंग की वो करते रहे थ्रू आउट द इनिंग्स। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि एज ए बैट्समैन आपको किसी एक बॉलर पे उसने सेट नहीं होने दिया, और दूसरा ये है कि यू नेवर नो कि कहाँ से विकेट आ जाए। जब इतना छोटा टोटल है तो कहीं से भी आप चांस लेते हैं विकेट का, और विकेटें आती नहीं उनको। तो आई थिंक कि वहाँ पे नवाज तो शायद 2 लेफ्ट हैंडर पे नहीं बनता था, बट इफ्तिखार को आप एक आधा ओवर करा सकते थे, हो सकता है उसको कोई ऐसी शॉट मारा जाता, विकेट मिल जाती। इसी तरह नवाज, सही बात आप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको, अगर आपने आगे भी देखना, आपका मेन बॉलर है तो आप उसको बॉलिंग मतलब बिल्कुल ही, अगर वो साइड पे है तो उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा स्लाइड करेगा, उसकी बैटिंग पे भी इफेक्ट करेगा। इस मैच में अगर ज़रूरत नहीं भी है तो फिर भी आई थिंक कि ये जहन में रखना चाहिए हमें प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि भाई अगर मेन बॉलर है तो कहीं भी उसको बॉलिंग बनती है तो करानी चाहिए। 7 बॉलर्स उन्होंने यूज़ किए और इससे एडवांटेज ये हुआ जिम्बाब्वे को कि जो जब मैच क्रंच सिचुएशन में गया तो जो डेथ ओवर्स थे उनके कैप्टन के पास ऑप्शन थी। उसके पास 4 लोगों की ऑप्शन थी कि वो उनसे, फिर उसने असेस ये किया कि आज के मैच में कौन सा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, किसका कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा है, तो मैं उससे जो है डेथ ओवर्स करवाऊंगा। और उन्होंने उस प्रेशर के साथ डील किया क्योंकि दे हैव ऑलरेडी बोल्ड देयर फर्स्ट 2 गुड ओवर्स, जो जितने भी 3-4 थे जिम्बाब्वे के बॉलर्स, तो वही एडवांटेज मिला। इसीलिए मिसबा भाई का वो बहुत अच्छा जो था कि आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं एंड में। तो ये हमारे पास ना थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि ये जो फॉर्मेशन है ना कि सिर्फ 5 ही बॉलर से बॉलिंग कराई जाएगी और वही जो है इट्स देयर जॉब टू डू द जॉब, तो वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होते जा रहा है। आपको अब 6 या 7 बॉलर्स यूज़ करने ही पड़ेंगे ताकि आपके पास ऑप्शन, और आप असेस करेंगे यार उस दिन जो है वो कौन अच्छी बॉलिंग कर रहा है और वो आगे फिर डेथ ओवर्स करे। बहरहाल बुनियादी तौर पे मसला ये है कि बहुत सारे सवालिया निशान लग गए हैं आज की परफॉर्मेंस के बाद। और आज प्री मैच में और कल जब हम रात को भी थे यहाँ पर ऑन एयर, तो मैंने ये बार बार वकार बोला था कि जिम्बाब्वे ने 112 पे हमें 99 पे आउट किया हुआ है। दे कैन बी, एंड देन मिसबा हैज़ बीन कंसिस्टेंटली सेइंग दे आर अ टीम, देयर बॉलिंग कैन डोमिनेट और कैन गेट यू इन अ टाइट सिचुएशन। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे फियर्स जो हैं दे हैव कम ट्रू, एंड नॉट दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, लाइक मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी फैंस राइट नाउ, लाइक यू और शोएब और मिसबा। बट लास्ट पार्टिंग वर्ड वकार, यू लुक एट दिस परफॉर्मेंस, ऐसी जब परफॉर्मेंस होती है तो फिर अचानक एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाता है। ऐसे ही होता है ना, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, वो एक पेंडोरास बॉक्स मौजूद होता है तो वो उसको खोलना पड़ जाता है क्योंकि बहुत सारे सवाल ये निशान लग जाते हैं। देखिए फ़खर, हम लोग भंडारा जो भी पेंडोरा बॉक्स जो है ना, हम लोग नहीं खोलते हैं, हम लोग पहले भी नहीं खोल रहे थे और हम खोलना चाहते भी नहीं थे, लेकिन हम आपको पहले भी बताते जा रहे थे प्रॉब्लम्स। ये नहीं कि हम अभी आज बोल रहे हैं, मैं तो ये बहुत अरसे से जी बिल्कुल, आप भी जो हैं फॉर द लॉन्गेस्ट इश्यूज ना सिर्फ यहाँ बैठ के बताए, मैंने सेलेक्टर्स बोर्ड सबको बताए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यू नो कहीं ना कहीं आपको जब झटका लगता है तभी समझ आती है। सो आई होप दे विल अंडरस्टैंड दैट। लेकिन यू नो अभी भी मैं कहता हूँ कि हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी होप बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। अगर पाकिस्तान अगला साउथ अफ्रीका से मैच जीतता है और अपने सारे मैच जीतता है, एंड वी स्टिल गॉट अ फेयर चांस कि अगर साउथ अफ्रीका इंडिया से, हमें वही बात है कि नीफ एंड बट पे चले गए हैं, लेकिन ये है कि अगर ऐसा होता है जो कि हमारी हिस्ट्री है कि हमारे साथ होता रहा है, एंड दिस इज हाउ वी हैव वन बिग टूर्नामेंट्स आल्सो, डोंट फॉरगेट, सो डोंट लूज होप, लेट्स हैव फन नाउ। नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली। भाई मेरा आपसे क्वेश्चन है जी सर, प्लीज आप अच्छा सुनिए, आप एक सेकंड अपना क्वेश्चन रोकें, होल्ड करें, बिकॉज हमारे पास शायद हाशमी साहब हैं हु इज मेट अप विद शान मसूद एट द ग्राउंड। लेट्स लिसन इन।
शान मसूद हमारे साथ हैं। बहुत कोशिश की शान ने कि पाकिस्तान जीते, लेकिन एक वाइड बॉल पे ये स्टंप हुए, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया। आखिरी ओवर में 11 रन दरकार थे और आखिरी बॉल पे 3 रन दरकार थे, लेकिन शाहीन ने हिट ज़रूर लगाई लेकिन वो रन ना बना सके। शान, बड़ी मायूस कुन शिकस्त से पाकिस्तान की टीम छोटे टारगेट और छोटी टीमों को बड़ा क्यों मना लेती है? देखिए, बिल्कुल मायूसी की बात है। अगर बैटिंग यूनिट देखें, अगर बैटिंग यूनिट की उसमें एबिलिटी देखें, आई डोंट थिंक कि हम ऐसी टीम है जो 130 रन ना चेस कर सकें या इवन फर्स्ट बैटिंग में 130 रन ना कर सकें। तो सिचुएशन थी जहां हम काफ़ी कंट्रोल में थे गेम के। फाइट बैक बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया था पावर प्ले के बाद, और जिस तरीके से जब मैं और शादाब खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि बस अब गेम फिनिश करके जाना है। एकदम से विकेट्स गिरी और प्रेशर हमारे ऊपर आए और अनफॉर्चुनेटली हम उसे ख़त्म नहीं कर पाए। क्या खास बॉलिंग कर रहे थे सिकंदर? आपने 1-2 दफ़ा थोड़ा मायूसी का भी इज़हार किया और बताया कि शायद उनकी बॉल स्किड कर रही है। जी, ये पिच थोड़ा डिफरेंट है। इधर आपको स्पिनर्स जो करेंगे उसमें वेरिएशंस में आपको टर्न नहीं मिलेगी, लेकिन ज़रा सा ग्रिप किया, थोड़ा सा बॉल आपके पैडों की तरफ पड़ के आ सकते हैं, क्योंकि ग्रास की कोटिंग काफ़ी है ज़्यादा। उसने क्लेवर बॉलिंग की है और उसने फ़ायदा उठाया कि जब नया बैट्समैन आया है, नए बैट्समैन को उसने विकेट टू विकेट बॉल की और उसको उसमें सक्सेस भी मिली है। आप 1-2 बॉलें खेल जाते, जैसे जब मैं और शादाब खेल रहे थे, तो फिर उसको खेलना ज़्यादा आसान था। उस पर 1 भी हो रहा था, 2 भी हो रहा था, एक आध चौका भी लग रहा था, शादाब ने छक्का भी मारा। तो आई थिंक वही है कि बस अकाउंटेबिलिटी हम लेंगे एज ए बैटिंग यूनिट कि जब 130 का टारगेट होता है, वो हमारी इतनी क्लास है कि हम उसको 130 अचीव कर सकें, लेकिन आज हमसे नहीं। आज साउथ अफ्रीका ने बड़ी विन की है, इंडिया ने बड़ी विन की है, तो अब हमारी किस्मत दूसरों के हाथों में है। देखें, अब जब इवन इंडिया से हारे थे तो आप ऑब्वियसली जब आप वर्ल्ड कप्स में रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं जाता, तो जो क्वालिफिकेशन की चीज़ होती है वो आपके कंट्रोल से जाता है किसी ना किसी परसेंटेज में। इंडिया से कम था, आज हारने के बाद 2 मैचेस हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा वो हुआ है। लेकिन अब देखें, हमारे हाथ में 3 मैचेस हैं, हमने 3 मैचेस जीतने। अच्छी बात यह है कि एक साउथ अफ्रीका से भी मैच है। कोशिश यही करेंगे कि अपने 3 मैचेस जीतें और फिर बाद का जो होगा उसको देखेंगे। थैंक यू शान, बहुत शुक्रिया। ये थे शान मसूद। जी हाँ, ये थे शान मसूद एंड ऑफ कोर्स शान देर ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड। ही डिड पुट अप फाइट देयर, बट बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि अगर आप अपने बैटिंग यूनिट को देखें तो ये हो नहीं सकता कि 130 रन जो हैं वो ना हो सकें जिम्बाब्वे के खिलाफ। सो आई थिंक ऑल क्रेडिट टू जिम्बाब्वे बॉलर्स, दे वुड गो होम वेरी वेरी प्राउड विद दैट परफॉर्मेंस। बिल्कुल, मेरे ख्याल में क्रेडिट उनको देना चाहिए। जैसी भी पिच उन्होंने अच्छा यूटिलाइज़ किया उन कंडीशंस को, और जो जिन लेंथ्स पे उन्होंने बॉलिंग की, सिकंदर रज़ा की हमने बात की, इस पिच पे आके ऐसी बॉलिंग करना और की विकेट्स लेना, आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था एक। दे बिलीव्ड इन दैट, और हमने वही मिस्टेक्स की और एंड पे लूज़ किया मैच और अपने आप को एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया। आई थिंक मैच हारना तो ठीक है, हार जीत होती है, बट ओवरऑल जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पूरे तरीके से जो फैंस हैं उनका भी और टीम का वो शैटर हुआ है। अब उससे निकल के अगले 3 मैचों में कैसे आपने खेलना है, ये एक बहुत बड़ी जो है ना क्वेश्चन मार्क है, और इससे आपको निकलना पड़ेगा अगर आप अभी वर्ल्ड कप में कुछ करना चाहते हैं। अभी भी वर्ल्ड कप में कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल में कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो। अभी सारी टीमों ने काफ़ी मैचेस हैं, आपस में खेलना है। आप अपने 3 मैच अपने बेहतरीन तरीके से खेलें, हाँ जी, और फिर लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। प्रकार, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट? I mean, we're in the middle of the World Cup, so I think we all got to stay positive. Number one, and then the opening slot got to really come play a little bit more aggressively, and don't worry about that you're going to lose a wicket or not. जो भी है अब आपको कश्तियाँ जलानी पड़ेंगी, ठीक है ना? You have to play a bit more positively. एक चीज़, और दूसरी फिर बॉलिंग में ऑफ कोर्स शाहीन का यू हैव टू रियली वॉच हिम क्लोजली कि वो कैसा जा रहा है, बिकॉज ही इज़ आर एसेट ऑल्सो, क्योंकि आगे भी क्रिकेट है, ये वर्ल्ड कप ही नहीं सिर्फ है। स्नैन बैठा हुआ है, अदर इफ़ यू थिंक दैट इज़ नॉट रियली हिटिंग द स्ट्राइप्स येट, बट सो देन प्ले हिम। These are the things you need to do. I thought, overall Shadab bowled really well. Wasim was outstanding today. Haris Rauf learned the lesson from the previous game. He gave nothing away in 4 overs. I think you got to work as a pack, as a bowling unit, and also don't forget you got to make sure that you start fielding well. We dropped 2 catches. Remember. Sorry, Shoaib, you wanted to say something. वेरी मेजर पॉइंट जो वकार भाई ने बोले, एब्सोल्युटली राइट। एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है,
देखें रोज़ रोज़ आपको नवाज़ और शादाब आप उनको प्रमोट करेंगे, वो आपको नहीं जिताएंगे। इस चीज़ पे आपकी जो मिडिल ऑर्डर है उनको, उन पे ये उनकी जॉब है, तो उनको जो है ना बहुत ज़्यादा जो है उनके बैटिंग ऑर्डर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वंस इन अ वाइल आपको बड़ा स्ट्राइक रेट चाहिए या आप बड़ा लंबा टारगेट चेस कर रहे हैं, देन इट्स एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ ये रोटेशन पॉलिसी वहाँ रखेंगे तो नुकसान होगा। ऐसे ही है, ये डेली नहीं हो सकता। फील्डिंग की आपने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट वो किया, 2 कैचेस ड्रॉप हुए। एक कैच हैदर से ड्रॉप हुआ जिसपे 2 रन बने, एंड में हम वो एक ही रन से हारे। क्रिकेट में एक रन भी जो आप खामखा का देते हैं वो आपको जो है वो गले पड़ जाते हैं। बाइट करता है एंड पे। सो वही चीज़ कि आप कहीं पे भी रिलैक्स नहीं हो सकते, कहीं भी आप एक रन बचा सकते हैं, दैट इज़ सम टाइम द डिफरेंस। तो आई थिंक इस चीज़ को हमें जहन में रखना होगा। और वकार भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि बॉलिंग और बैटिंग की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन फील्डिंग में भी हम लैप्सेस कर रहे हैं और वो हमें नुकसान ये जरा देखते हैं। Look, this is a catch. It's high, it's big. Standard catch on the boundary line fielder, and oh boy, oh boy, oh boy. What went wrong there, Shoaib? You're one of the best fielders we've had. क्या हो रहा था यहाँ पे? आई थिंक देखें जब कैच आया भी है तो वो मूव कर रहे थे और इतना टाइम था कि उस पर आप जल्दी एडजस्ट करने की कोशिश करते, कम अंडर द बॉल एंड देन मेक योर पोजीशन टू कैच द बॉल। एक ये था उनके दिमाग में। दूसरा उनके दिमाग में एक और चीज़ थी कि उनको बाउंड्री नहीं समझ आ रही थी कि मेरा डिस्टेंस कितना है। सो मतलब ही वॉज थिंकिंग 2-3 चीज़ें एट द सेम टाइम कि यार मैं कहीं कैच करूंगा तो मेरा पैर बाउंड्री पे ना लग जाए, वो भी 6 रन हो जाएंगे। तो ये 2-3 एलिमेंट्स है जिसकी वजह से ये कैच ड्रॉप। एक इफ्तिखार वाला वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वकार, यू कैन सी दैट वाज जी इफ्तिखार ने छोड़ा है। ये कैच आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लुक एट दिस वन। या दिस वन बहुत तेज था, पुल मारा उन्होंने। तो इसका मतलब 3 छोड़े हैं। There's another one. लुक एट दिस वन। This should have been. This is a standard catch. This is a very. I mean, if you're a batsman, if you can't catch that, that's a serious issue. Even Hyder wala bhi, और एक और catch भी. That means I forgot the other one. That there's another catch dropped by Haris Rauf, which went for 4, went through his hands. Yeah, that went for 4 also. So T20 cricket में अगर आपको इस तरह के chances, इस तरह के opportunities hold करनी पड़ेंगी. And that also went for 4. Yeah, that is how it वो happened. सही जगह पे नहीं खड़ा हुआ था। हारिस। वो इसलिए आपको जो है ना असेस करना वो बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट कैप्टन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फील्डर कि आप अपने आप को एडजस्ट करें कि मैं राइट पे तेज़ मूव कर सकता हूँ या लेफ्ट पे, या मैं आगे तेज़ मूव करता हूँ या जो बैकवर्ड पीछे जो कैच आता है उस पर तेज़ मूव करता हूँ। मुझे ये लगता है कि वो बिल्कुल बीच में खड़े हुए थे जहाँ पे 2 रन्स भी बन सकते थे और इस तरह के कैचेस जो हाफ शॉट्स लगती हैं, क्योंकि वो बड़ी बाउंड्री थी उस तरफ जहाँ पे वो खड़े हुए थे, थोड़ा सा आगे खड़े होते तो आसान हो जाता वो कैच कर। देखिए ओवरऑल जो जितनी हमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, चाहे वो बैटिंग में है या बॉलिंग में है या फील्डिंग में आ रही हैं, जो इशू नज़र आ रहा है वो यही है कि आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं बीच में फंसी हुई है। वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। आपको प्रेशर भी है, समझ नहीं आ रही कि मैंने कैसे बैटिंग करनी है, फील्डिंग में भी कहाँ खड़ा होना है, बॉल आया है मैंने बाउंड्री रोकनी है या मैंने कैच करना है, वो बिल्कुल फंसे हो। आप जो चीज़ें बोल रहे हैं ये तो आई डोंट वांट टू से इट एंड आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव अबाउट इट, बट दिस इज वेरी बेसिक things that you're saying. Is level पे you're playing international, you're playing for national, you're playing the World Cup. Yeah, so if you're saying to me, important. it worries me as a Pakistani cricket fan कि आप मुझे as an expert ये बता रहे हैं कि दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, ये नहीं पता कि खड़ा कहाँ होना है, मैंने एक बैटिंग कैसे करनी है, मैंने अपनी रिदम कैसे बनानी है, तो ये तो फिर बड़ी फिक्रमंदी की बात हो जाएगी। सारी चीज़ें डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल से। और कॉन्फिडेंस लेवल स्पेशली अगर बैट्समैन है वो अंडर प्रेशर है, एक्सेस बैगेज के साथ है, तो वो आपसे हर चीज़ गलत होती है और यही हो रहा है। अंडर प्रेशर रन्स नहीं हो रहे, उसमें हम सारा कुछ गलत कर रहे हैं, हमारी फील्डिंग फॉर्म भी उस तरह जा रही है। तो आई थिंक मेंटली यू हैव टू No, but okay, explain to me, then I'm going to ask you a question. Explain to me कि क्यों है ये मेंटल प्रेशर? आप अभी ट्राई सीरीज जीत के आए हैं न्यूजीलैंड में, आप एशिया कप में बड़े फाइनल तक खेले हैं, आप फाइनलिस्ट होकर आए हैं, तो फिर किस चीज़ का आपके ऊपर प्रेशर आ गया अचानक?
I don't understand. You have to explain to me. How can you be on Tuesday one of the best batsmen out there in the ICC rankings, and on Wednesday you can't score 2 runs, and on Thursday you can't take catches? It makes no sense to me. Sorry. सेम टीम खेल रही है, वही मैं कह रहा हूँ, same team खेल रही है. So I'm trying to प्लेयर्स understand. को बैक किया जा रहा है, तो मतलब इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मैंने अपने 25 साल में किसी से मुझे नहीं मिला. आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसे ही होगा, वकार भाई के साथ भी ऐसे ही होगा. अगर वसीम भाई होते तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ होता. कि इतनी बैकिंग मैंने अपने करियर में नहीं देखी है कि वो मिली हो प्लेयर्स को कि यार बच जाओ, आप ही हो और आप ही ने खेलना है. और ये द मैसेज वाज गिवन टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि यही रहेगी, यही टीम रहेगी, यही खेलेंगे, यही वर्ल्ड कप में जाएंगे. तो फिर क्या वकार ये हो सकता है कि इतनी ज़्यादा बैकिंग मिल गई है कि यार मैं ना परफॉर्म नहीं भी किया, मैं द टीम इच बैकिंग है. नहीं ऐसा तो नहीं सोच सकते ना. I mean, You see, makes no sense. देखिए इन्होंने जो बात की और फिर वो जो बात कर रहे हैं, तो फिर ये तो यही है. बट anyway, let's look at the positives here. Positive ये है कि मोहम्मद वसीम ने बेहतरीन बॉलिंग की, उनको आज मौका दिया गया, उन्होंने 4 विकेट्स ली. सो वेल बोल्ड मोहम्मद वसीम, वेल डन. एंड हारिस रऊफ हैज़ लर्नड अ लेसन फ्रॉम दैट इंडियन डिफीट. दो आज उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग, 3 रन का इकॉनमी, 12 रन दिए खाली. लेकिन एक चीज़ है कि रिमेंबर दैट आज हारिस वाज नॉट bowling against a great batting side like India or what he'll be faced with when it comes to South Africa and all that. Before we get on to this answer, I guess let's praise Shadab Khan as well. Yes, He's great taken bowling by 3 him. wickets, given away 23 runs. Yeah. So when Shadab was bowling so well, here's my question to you then again: why, इफ्तिखार को भी करा देते और नवाज को भी करा देते यार ये कोई ओवर? क्वालिटी बॉलर है और रिस्ट स्पिनर है, उसके पास क्वालिटी है. शदाब के पास उस 2-3 टाइप की वो डिफरेंट गुगलीज करता है. Shadab is he's such a pleasure to watch when he's bowling. He can be devastating for batting lineups. और ये जो पिछली दफ़ा हमने जब खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो मैच बड़ा क्रूशल था, उसमें भी शादाब ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और विकेट्स पिकअप की थी. इज़ ऑलवेज अ डिलाइट टू वॉच. आई विश ही हैड बैटेड लॉन्गर टुडे एंड ही कुड हैव फिनिश्ड दैट गेम. दो आपने सही कहा कि उनकी गेम नहीं है, उनकी नेचुरल गेम है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं. बट आई थिंक एट दिस लेवल यू नीड टू समटाइम्स अंडरस्टैंड कि यार अभी मुझे अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, लेट मी रोटेट स्ट्राइक क्विकली. इसीलिए, और बीइंग अ वाइस कैप्टन ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट, ठीक है, आपसे सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कम इन द मिडल ओवर्स एंड टेक विकेट्स. बट एट द सेम टाइम जो आपको अगर ऊपर वाले नंबर्स पे भेजा जा रहा है, चले आपसे जो है वो डिमांड ये की जा रही है कि आप कोई ऐसी इनिंग्स खेलें कि हमें मैच के नज़दीक लगा दें. बट एंड ऑफ द डे इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न. क्योंकि आपको एक गेम खेलना आता है कि मैं बाउंड्रीज मार लेता हूँ, लेकिन अब आपने ये सीखना है कि मैंने मैच को कैसे फिनिश करना है. तो वो मुझे जो है उनमें एक चीज़ मिसिंग है. वकार मोहम्मद वसीम, वेरी इंप्रेसिव टुडे द वे ही बोल्ड एज अ फास्ट बॉलर. प्राउड ऑफ द बॉय. एक्सेलेंट. बॉलिंग तो बहुत अच्छी की, बैटिंग में थोड़ी आज स्ट्रगल की, काफ़ी सारे बॉल उनको समझ नहीं आया. बट ही वाज हिटिंग द स्ट्राइप्स रियली वेल. The length was just perfect. Yeah. That's the length you needed to ball on this surface, and a great appeal there. Yeah. हम सब समझ रहे थे कि शायद ऊपर से निकल जाएगा, but it was a very good appeal and very good review taken also. बहुत ही उम्दा बॉलिंग की. He did not really give anything away. The lengths, ये देखें ना, these are the lengths we talk about, which I think Shaheen and Naseem also. यहाँ पे शायद गेंद थोड़ा सा रिवर्स हो गया था, आखिरी ओवर था. And as a bowler, he's improving really well. Yeah, he's got a batting potential, but I think he was just too big a game for him, and he should have worked on his batting. I hope as an all-rounder, we give him a fair bit of, ख्याल रखें इनका. He's an asset that can be developed really well. फहीम अशरफ वाला नहीं होना चाहिए हाथ इनके साथ. I hope कि he's taken care क्यों of. हमें डेवलप करना पड़ा एक बंदे को जब वो पाकिस्तान टीम में आया, पहले क्यों नहीं है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? मैं थोड़ी करता हूँ, ये तो आपको पता होना चाहिए. नहीं, आपने कहा कि हमें इसको डेवलप करना चाहिए. So since we have Waqar bhai here, let's just ask him. जी वकार, that's a good question by the way. ये क्यों है कि हम सबकी बात कर रहे हैं, हैदर फोकस करें तो वो ये करेंगे और फिर उनको यूं करें तो. First of all, I am not a chairman of cricket board. एक चीज, ना मैं CEO हूँ, ना मैं डायरेक्टर क्रिकेट हूँ. These are their job to do that. I understand. Fair enough. And it's been more than a year that I have. वकार भाई, मुझे तो यही बताया गया था उस वक्त भी कि वसीम जूनियर जो है वो फ़हीम अशरफ से अच्छा बैट्समैन है. तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? तो मेरा तो बिल्कुल ये ख्याल नहीं है. मेरा ये ख्याल है कि मेनली ये वसीम की बैटिंग भी आप देख लें. ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर एंड ही कैन हिट अ फ्यू बॉल्स. स्पेशली आगे उसको अगर बॉल मिलता है तो वो उसकी स्ट्रेंथ है. हमारी पिचेस पे वो अच्छे हिटिंग कर सकता है, बट इन दो सॉर्ट ऑफ कंडीशंस जहाँ पे इतना बाउंस है, उनको अपने बैक फुट पे काम करना पड़ेगा.
इवन जब उस टाइम भी वो टीम में था तो उसके साथ जो मेरी भी बात होती थी और थोड़ी प्रैक्टिस कराता तो यही कि आपको कोई भी मुंह में बॉल नहीं करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे ही 6 के बाद के बैट्समैन आते हैं तो आपको बैकफुट अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, चाहे वो कट शॉट है या पुल है, क्योंकि ज़्यादातर उस टाइम पे आपको फास्ट बॉलर्स फिर पीछे बॉल करेंगे। वकार, ये हारिस रऊफ की तरह बॉलिंग देखें, व्हाट डू यू थिंक ही वाज डूइंग डिफरेंटली टुडे दैट ही वाज सो इफेक्टिव? Same. I think he's hitting a hard length, right? Yeah, this pitch was like if you got 145 or 47 इस पेस पे बॉल करते हैं आप, तो if you hit that length, it's so hard to. The only shot which Malik has been saying that you can play across the line and move away and like that. Look at the way the ball is carrying. Yeah. So they even Zimbabwean bowler, they did the same. Yeah. I think what we of course made a mistake early on was just to bowl too full. Also another thing that interesting, very few change-ups, slower ones today. Learned a lesson, I guess. Yeah, I guess so too. बहुत कम मैंने देखा आज उन्होंने जो है वो slow ones किए. So anyway, good positive for Pakistan. Good to see this thing. I hope कि ये मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता पाकिस्तान के लिए, टोटली डिफरेंट हो सकता था. Ask the Pavilion, हैशटैग Ask the Pavilion पे हम आपके सवालात लेंगे. मुझे मालूम है, मैं अभी देख रहा था. Ask the Pavilion में आज आप ये भी ज़रूर कहिए कि गिव योर कमेंट, मतलब कि आप अपने कमेंट्स भी दें, विल रीड देयर कमेंट्स आल्सो. मेरा नहीं ख्याल कमेंट्स आज पढ़ने वाले होंगे. नहीं, कार्रवाई पढ़ लेंगे. देखिए मेरी बात सुनो, जो सेंसिबल कमेंट्स भी आएंगे, देयर आर पीपल हु लव आस्क द पेविलियन. आज वकार यूनुस के कहने पे दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि सवाल के अलावा आप अपनी कमेंट्स भी दे सकते हैं, अपने तासुरात भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और तमीज़ के दायरे में, और तमीज़ के दायरे के. दैट वी रियली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज तमीज़ के दायरे में अंदर रहें ताकि आई कैन रीड देम ऑन एयर. एंड इस मौके पे हम लेंगे एक ब्रेक. व्हेन वी कम बैक वी गोना टॉक अबाउट द अदर गेम्स टुडे. चूंकि 3 मैचेस हुए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में और इस ग्रुप के अंदर, एंड इंडिया डिफीटिंग नेदरलैंड्स देयर. सो वी गोना टॉक अबाउट द अदर गेम्स. वी हैव some very good exciting games that happened. See you on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion, and the ICC Men's T20 World Cup coverage continues right here on A Sports and 10 Sports. And we're talking now about the earlier games that we had today. आज 3 मैचेस हुए थे. पहला मैच जो था वो इंडिया बा मुकाबला नेदरलैंड्स था. इसका ये मैच समरी आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. इंडियन बैटिंग dominating there. Look at that. Virat again with a sensational half century at a strike rate of 140, but it was Surya Kumar Yadav who played 51 of 25 at a 204 strike rate. Mikaran there picking up 1 wicket, and Klaasen picking up 1 wicket. In reply, nothing much there from the Netherlands batsmen, but look at that bowling card. Everybody contributing. India winning that by a big margin of 56 runs. What an innings by Yadav today, Misbah. I mean, it was just very, very special. I think जिस तरह की वो फॉर्म में है, ये कोई पहली इनिंग नहीं है. The way वो पूरा ये खेलते हुए आ रहा है पीछे से इंग्लैंड से. आई मीन सुपर बैटिंग डिस्प्ले, और जो रेंज ऑफ शॉट्स हैं उसकी वो ज़बरदस्त है. हर तरफ को खेलता है और बड़ा इवन अच्छे बॉल को भी इतने आराम से वो कहीं ना कहीं गैप में खेल देता है, और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है. 360 प्लेयर जिसको आप कह सकते हैं कि 360 प्लेयर के बॉलर को वो कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि अब कौन सी शॉट खेलेंगे. एक्स्ट्रा कवर और लैप शॉट बड़ी अच्छी मारता है. उसके बाद थोड़ा सा बाहर जाके ऑफ स्टंप के वो इन बिटवीन जो आपका स्क्वायर लेग फाइन लेग के फील्डर को बाइसेक्ट करना, वो बड़ा ज़बरदस्त है. तो ओवरऑल, और सबसे जो अच्छी चीज़ है, मिडिल ऑर्डर में आके इतना आसान नहीं है आते ही इस मोमेंटम के साथ खेलना. वकार, रोहित शर्मा ने आज, इन्होंने कप्तान ने भी सेंचुरी गाड़ी आज, और लेकिन पोस्ट मैच में उनका जब इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की. उनसे पूछा गया कि यू मस्ट बी हैप्पी, यू विद द रन्स नाउ, फाइनली गॉट अ हाफ सेंचुरी एंड ऑल दैट, एंड ही लुक्ड वेरी डिसअपॉइंटेड. ही वाज नॉट हैप्पी. ही सेड नहीं, आई कुड डू बेटर देन दिस. इट्स नॉट ओके, इट्स अ गुड हाफ सेंचुरी, बट आई एम एक्सपेक्टेड टू प्ले बेटर एंड आई शुड बी प्लेइंग बेटर. आई मीन दिस जस्ट it's a totally different ball game altogether there. Full of confidence, that's what they say. Yeah. जब आपको confidence हो, आपके middle order पे भी और आपको अपने ऊपर भी इतना confidence हो, तो फिर then you can say all these things. And he is a very destructive batsman. We all know that. And he knows his gaps. He knows his shots. He knows his game. He's such a complete player. But when he says that this could have been a better innings by me, this could have been a better effort, what does he mean? What does he mean by that? Better inning, when he says that, means he can say that he must have been saying that his strike rate
should have been much better. Although इन्होंने बहुत slow खेले early on, but once they start coming at them or putting them under pressure, they just back themselves. 3 छक्के 4 चौके 135 strike rate. Although पहले कुछ बॉल तो बिल्कुल ही उसने बिल्कुल ठक्का लगा क्योंकि केएल राहुल जल्दी आउट हो गए. He was taking way too long early on. But आपके पास इस तरह का मिडल ऑर्डर हो तो then you can afford that. हो सकता है उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए भी दिया हो, कुछ उनके चल रहा होगा दिमाग में, दिल में, क्योंकि वो कैप्टन भी हैं. ही इज प्लेइंग एज अ लीडर. सो आई गेस समवेयर मुझे ऐसा फील होता है कि उनकी बैटिंग में उनकी थोड़ी लीडरशिप जो है ना वो थोड़ा डोमिनेट कर रही है, मुझे ये लगता है. तो आई गेस when you're batting you're just playing as a batter. उसकी वजह ये है मालिक कि जो वो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वो टोटली उन्होंने चेंज किया पिछले वर्ल्ड कप के बाद. अब वो पहले 6 ओवर में कोशिश करते हैं कि 60+ रन्स करने जाए और आज उनके 32 रन्स थे. थोड़ा सा नीदरलैंड ने उनको टफ टाइम दिया है. देन वो अगले 4-5 ओवर में मेकअप तो किया उसको, लेकिन वो चाहते हैं कि एटलीस्ट 10 ओवरों में उसी तरीके से हम खेलें. 90 रन या 100 रन लगे होने चाहिए, स्पेशली ऐसी टीम के अगेंस्ट सब खेल रहे हैं. Another big difference with Pakistan and in these teams is that हम जब अगर बाउंड्री लगाते हैं या चौका या छक्का मारते हैं ना, तो हमारा नेक्स्ट जो सोच होती है ना कि हम सोचते हैं कि हम ना किसी तरीके से सिंगल ले लें. ऑल्दो बॉल वहाँ होता है, एरिया में होता है, एंड वी जस्ट नज इट अवे फॉर सिंगल, विच इज़ ओके व्हेन यू चेजिंग 150 और 160 और व्हेन यू वांट टू गेट देयर. ठीक है ना. लेकिन बाकी टीमें ये है कि अगर उसको पहला बॉल मिला है और उसके बाद दूसरा भी वही मिला है, ही विल गो फॉर अनदर 6. आपने ऑस्ट्रेलिया को भी देखा कि व्हेन दे स्टार्ट डोमिनेटिंग यू, दे रियली किक यू आउट ऑफ द गेम. And that is what T20 cricket is. I think one got to start thinking on those lines. That this is how T20 is modern going cricket, to, the innovative cricket. माइंडसेट की बात है एज अ टीम. Yeah. अगर आपका माइंडसेट ये है एज अ टीम कि हम लोगों ने 150 और 160 वाला मैच खेलना है, तो फिर आप जैसे आप कह रहे हैं वो वैसे ही खेलेंगे, जो कि हमारे भी थोड़ा सा जो है वो खेलने चले जाते हैं. जब आपका माइंडसेट ये होगा हमने 180 वाला मैच खेलना है, आपको कोई बैठने की ज़रूरत ही नहीं है. हर प्लेयर जो है उसके पास क्लैरिटी आ जाएगी, 180 वाला मैच खेलना है, हाँ भाई मेरी इनिंग्स ऐसी होनी चाहिए. यहाँ पे सूर्या कुमार यादव की एग्जांपल मैं इसलिए दूंगा, वो भी आउट हो जाते हैं. 1-2 इनिंग्स उनकी भी बीच में ऐसे आती है कि वो 5 रन के अंदर आउट हो जाते हैं, 10 रन के अंदर आउट हो जाते हैं, लेकिन वो अपना गेम नहीं चेंज करते. जो वे ऑफ प्लेइंग है वो नहीं, उसको नहीं चेंज करते. और मेरे ख्याल में ये है कि जब मुझे ये लगता है कि जब हमारा थोड़ा सा ऐसा हो कि 1-2 इनिंग्स ऊपर नीचे कम रन्स की चली जाएं तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेने चले जाते हैं. ये नहीं होना चाहिए. अच्छा, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है बाबर आजम का विराट कोहली के साथ. आज भी विराट कोहली ने बड़ी ज़बरदस्त निस सेंचुरी जो है वो गाड़ी है. ये इनिंग देखें, इसका मोमेंटम देखें, एंड मिसबा एज अ बैट्समैन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाबर आजम एंड विराट कोहली? आई थिंक जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम पे वो यही है कि विराट बिकम्स अ डिफरेंट प्लेयर. जैसे जैसे वो बॉलिंग खेलता जाता है उसका स्ट्राइक रेट इम्प्रूव होता जाता है और वो 15, 16 या 20 गेंदें खेलने के बाद बहुत डेंजरस हो जाता है. तो सेम थिंग बाबर को करने की ज़रूरत है. कई दफ़ा हमें नज़र आता है कि फर्स्ट 6 ओवर्स के बाद कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक रेट नीचे आता है और वो मैच विनिंग इनिंग में चेंज करना पड़ेगा उसी तरीके से जैसे विराट करता है. राइट, बिल्कुल. इसके साथ ही जी, इसके साथ में डिफरेंस जो है ना, दोनों वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, लेकिन विराट जो है उसको पॉकेट्स में खेलना बहुत अच्छा आता है. ये फ़र्क है उसका कि वो जो है ना हमेशा जहाँ पीछे फील्डर्स खड़े हैं वहाँ नहीं वो छक्के मारता. उसको जहाँ गैप्स नज़र आते हैं उसने अपने शॉट्स पक्के किए हुए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस की हुई है, इसीलिए उसका सक्सेस रेट जो है वो इतना कंसिस्टेंट इसलिए है कि उसको पॉकेट्स में खेलना आता है, उसको गैप्स में खेलना आता है. जी वकार, पॉकेट्स में भी खेलना आता है. पॉकेट्स में खेलने का मतलब है यू प्लेइंग अ सेफ शॉट. ठीक है ना. और दूसरा ये फ़र्क ये जो T20 में नज़र आया है जो बाबर का और इसका है कि ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ यूजिंग द बॉटम हैंड, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग ओवर द टॉप. बाबर अभी भी क्लासिकल बैट्समैन, वी लव बाबर. आई थिंक द वे जब वो खेल रहा होता है तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा एलिगेंट लग रहा होता है. बट सम टाइम T20 क्रिकेट में इट्स अबाउट गोइंग ओवर द टॉप बिकॉज यू बैटिंग एट नंबर
number 1 and 2, then you fielders are in, you have to You just have to go go with it. Otherwise, आपको gap अगर नहीं मिलेंगे तो डॉट बॉल हो जाएंगे तो pressure will be created. Right, Misbah, let me take this one to you. ये बताइए कि नेदरलैंड्स के लिए वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए? आज उन्होंने 123 किया इस टारगेट को चेस करते हुए for the loss of 9 wickets. But what do you think should be their way forward? आई थिंक द बॉलिंग इज़ गुड और उन्होंने दिखाया है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग आज भी की. इंडिया जब इवन एंड के ओवर्स भी अच्छे कर रहे थे, बट ओवरऑल आई थिंक थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा उनको बैटिंग में, क्योंकि जितने भी मैच उन्होंने जीते हैं उसमें मोस्टली उन्होंने बैटिंग में स्ट्रगल किया. तो या तो वो थोड़ी सी उसको अप्रोच को चेंज करे. ऊपर से भी मेरे ख्याल में उनके एक ही ओपनर डाउड ही रन्स कर रहे हैं, उसके अलावा किसी की कोई कंट्रीब्यूशन उस तरीके से नहीं आ रही है. अगर उन्होंने मैच जीतने हैं तो आई थिंक बैटिंग आप बेहतर करनी पड़ेगी. स्ट्रॉन्ग टीम्स है यहाँ पे, जिस तरीके से बाकी टीमों की स्ट्रेंथ है वो आप हर दफ़ा ये नहीं हो सकता कि अगली टीम 115-20 करेगी हम वो चेज़ करें. और इसके साथ ही लेते हैं एक और वक्फा राइट हियर ऑन द पेविलियन. कीप वाचिंग ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. विल सी यू ऑन द अदर साइड. Another game earlier today was South Africa clashing with Bangladesh. South Africa, oh boy, ये मैच समरी आपके सामने लेकर आते हैं. इसको और से देखिए, 205 रन किए. एक वक्त पे ऐसे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका 230-240 रन करेगी. Credit to Bangladesh bowlers कि they reined them in. Otherwise, they were going. Riley Russo there with 109. This is just an amazing innings. It was a treat to watch. And again, Quinton de Kock there accompanying him there. Fantastic cricket there. Average effort by the Bangladesh batting there. Nothing except Das there coming up with that 32-run innings. उसके अलावा look at Nokia, 4 for 10. That's just incredible bowling there by him, and Shamsi picking up 3 wickets for 20. Just a fantastic win. South Africa won this by 104 runs, and that's like a big average. Your average goes straight up. Great game of cricket. और इसी मैच के हवाले से ये जरा जो बैटिंग की है राइली रूसो ने, वकार ये किस नौयत की? अभी हम बात कर रहे थे, वो आपने कहा था कि ये यू कांट प्ले लाइक दिस स्टाइल, यू कांट प्ले लाइक दैट स्टाइल. मैं पूछ रहा था वो कौन सा स्टाइल है, आपने उसका जवाब नहीं दिया. ये कौन सा स्टाइल है ये तो बताएं जरा. इस स्टाइल की बात कर रहा था मैं. इसको मॉडर्न क्रिकेट भी कहते हैं गालिबन. Yeah, modern cricket. I mean, you got to be positive, you got to be aggressive. If the ball, even sometimes the ball is not there, you got to still take a risk at times. So that's how he plays. He's wasted about 6 years of his international career. He went away and he sort of refused to play for South Africa. And then I guess इनकी management ने या जिसने भी ये काम किया है, this is going to really give them, that plus of him coming at number 3 is just a big edge because he's a big hitter. And और ऐसा है कि मैंने इसको ये पहली दफ़ा नहीं, once he gets going, he is one of those batsmen who takes the game away from you and he score hundreds. I still remember मुल्तान में से 100 किया था. इतनी क्लीन हिटिंग करने वाला पाकिस्तान में इसका इक्विवेलेंट कौन है इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर? इस किस्म की क्लीन हिटिंग करने वाला, या डिकॉक की तरह क्लीन हिटिंग करने वाला, या विराट कोहली की तरह क्लीन हिटिंग करने वाला पाकिस्तान में कौन सा बैट्समैन है उनकी इक्विवेलेंट? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऑप्शंस नहीं. मैं अभी बताऊं कि वंदरडूसन इंजर्ड है, वो नहीं है टीम में. हेनरिक्स नहीं है टीम में. क्लासन बाहर बैठा हुआ है. तो आई थिंक दे स्टिल हैव सो मैनी रिसोर्सेज. अभी भी उनके पास इतने लोग हैं जो नहीं खेल रहे. सारी रिसोर्सेज कितने ने? आज I mean, you see, I'm just saying is, Shoaib, did you just see that innings, right? मैंने ये मैच लाइव देख रहा था होटल में, and I was like completely flabbergasted. And then फिर वो हमें वो एलन की इनिंग्स याद आ गई, उसने जो न्यूजीलैंड की तरफ से उन्होंने जो स्टार्ट दिया ये दिया. फिर आपने कल देखा जो फिंच और वार्नर जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे. तो आई एम थिंकिंग कि इस नौयत के प्लेयर्स हमारे पास कितने? देखिए, लंबा थोड़ा जवाब है. वो ये है कि अगर हम रॉसो को देखें तो ही इज़ प्लेड द डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर सो मैनी ईयर्स. फिर उसने काउंटी क्रिकेट जो है, कोल्ड पैक जो उसने साइन किया था, वो वहाँ पे बहुत क्रिकेट खेला है. वो हमारे PSL में बहुत क्रिकेट खेला है, वो बिग बैश में खेला है. तो देखें, जब अवेयरनेस की चीज़ ही ये है कि जब आप डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्लेड, तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है. यस, एंड ऑफ द डे उनको क्रेडिट इसलिए जाता है कि उन्होंने उन कंडीशंस में खेल के सीखा, उन्होंने उस प्रोसेस को. बट
I understand that there's a process and blah, 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 blah. We've talked about it many times. I'm just asking a very simple question. Where are the equivalents of these batsmen in Pakistan? नहीं आप PSL नहीं है देख ना, वो लें, मिसबा आप भाई ने PSL जवाब देख आपको लें। दिया था कि यही आपके मेरे पास सवाल का एक भी जवाब middle है। order नहीं है, लेकिन batsman आपके पास आपके पास बनेगा नहीं है कैसे? ऐसा। That should be discussed. कैसे बनेगा? और वो कल बाय द वे वकार ने पावर हिटिंग के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त हमें छोटी सी एक झलक दिखाई। झलक थी वो ना, बुनियादी तौर पे हमने कोई इस पे डिटेल बात नहीं की। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया को देखें तो इतने सारे लोगों ने उस पर कहा कि जी हमें तो ये पता ही नहीं था, यू नो, कि ये तरीकाकार भी हो सकता है हिट करने का। सो देयर इज जस्ट एनीवे आई एम स्क्रैचिंग माय हेड, स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि इनके इक्विवेलेंट के हमारे वाले किधर हैं। कहीं ना कहीं होंगे, ढूंढने पड़ेंगे या बनाने पड़ेंगे। बनाने ऐसे नहीं बन सकते कि आप सिर्फ कैलेंडर एक निकालें और मैचेस करा दें और एक दिन पहले टीम इकट्ठी हो और आप कोचेस 7-10 लगा दें ड्यूरिंग द सीजन, वो कुछ नहीं सिखा सकते। आपने थ्रू आउट द ईयर प्लेयरों को पास रखना है, ट्रैक करना है, उनके डेवलपमेंट पे, उनके स्किल पे काम करना है, फिर ही कुछ होना है। पता है ये बुनियादी कब हो तौर सकता पे सिस्टम के ऊपर एक दफ़ा फिर सवालिया निशान लग गया है। बहरहाल इस मैच की जिसकी हम बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका बांग्लादेश की, उसमें आपने देखा है इतने 100 रन से ज़्यादा की डिफीट मार्जिन से जीते। ऑलराइट शोएब मलिक, वे फॉरवर्ड फॉर बांग्लादेश। वेरी सिंपल, लिटन दास से ओपन करवानी चाहिए और कैप्टन शाकिब उल हसन को नंबर 3 खेलना चाहिए। ही परफॉर्म्ड रियली वेल वाइल बैटिंग एट नंबर 3। जब तक रन्स नहीं लगेंगे बोर्ड पे, आपके जो बॉलर्स हैं वो स्ट्रगल करेंगे। आप पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें। और दूसरा ये है कि बॉलर्स जो हैं उनको अर्ली ऑन विकेट्स लेने पड़ेंगे। ये उनके लिए वे फॉरवर्ड जो है, इफ दे डू दैट शरीफुल को भी खिलाना पड़ेगा इनको। लेफ्ट आर्मर is a decent bowler. I saw him in. He's, you know, you can really play him as a third seamer because Tuscan, he does give you early wickets, but he's very expensive at times. अच्छा जी, आज पवेलियन के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आज, एंड आई वांट टू स्टार्ट ऑफ। सबसे पहले शहर का पैगाम है आज पवेलियन के, पता नहीं फखरे आलम किस बात के लिए इतना पॉजिटिव होकर दिखा रहे हैं कि जी हमने एंड तक फाइट किया। समवन टेल हिम ये इतना बड़ा और मुश्किल मैच नहीं था जिम्बाब्वे का। जी सर, मुझे पता है, ये तो सही कह रही हैं, मगर मैं फिर भी पॉजिटिव रहूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे जो सीनियर्स हैं DNA में आपके यहाँ पे जितने सीनियर्स हैं उनका प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। और वो इमरान खास तौर पे हमारे जो आपको पता है वो इमरान जो है उन्होंने जो है खास तौर पे हमें बोला था कि हम पॉजिटिव मिसबा भाई कह रहे हैं तंजिया पॉजिटिव है। ये तंजिया पॉजिटिव है, राइट जनाब। Okay, so here's another one. This is slightly harsh, but I'm going to ask this anyways. Ahmed Mansoor कह रहे हैं that please somebody explain to me that if it is not the fault of the management of the PCB, the coaches, the players, then who do we blame? Who is accountable? They are accountable. They are accountable? They are accountable. I think captain, chief selector, हमारे प्रोड्यूसर साकिब कह रहे हैं जिम्बाब्वे इज रिस्पांसिबल, नॉट नन ऑफ दैट। दैट्स अ गुड वन बाय द वे साकिब। जिम्बाब्वे और द कंडीशंस आई डोंट नो, बट here is बात यह है कि सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट। सिलेक्शन से शुरू होके प्लानिंग एंड देन ऑब्वियसली डिलीवरिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें सारी कंट्रीब्यूट। कोई एक बंदा नहीं हरवाता, कोई एक वजह से नहीं आप हारते, छोटी छोटी चीज़ें कंट्रीब्यूट करके आपको इस जगह पे। इस पर स्टाइल ऑफ प्ले कैसे बदला जाएगा, दैट्स द क्वेश्चन। ये नहीं है कि वो फलाने का कसूर है, फलाने का कसूर है। सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, आप खुद ही कह रहे हैं कि नीचे पीछे हमारे पास कोई नहीं है। डरना आपको बंद करना पड़ेगा। डर के तो में कटोगे। डर ये है कि अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा और ये हुआ तो ये हो जाएगा, उसमें बेहतरी आप, मुझे ये लगता है थोड़ा लंबा आंसर है। एक सेकंड मलिक, आप कहते हैं कि डर निकालो, डर कैसे निकालेंगे? डर इसी तरीके से निकालेंगे ना कि आप उनको कहें कि जी आप यू आर द टीम टू प्ले दैट, और तो किसी ने तो वो दे दिया है यहाँ पर। यही तो हमने आज बात की कि इनको वो तो कह दिया कि यू आर द टीम, यू आर द टीम। डर जो है ना वो ऊपर से शुरू होता है। देखिए आपके, जब आपका चेयरमैन जो है ना वो एक टाइम पीरियड के लिए सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जब वो आपके चेयरमैन के पास क्लैरिटी होगी तो वो आगे अपनी टीम को क्लैरिटी दे सकते हैं और वही आगे प्लेयर्स में जा सकती है। तो मुझे ये लगता है कि क्लैरिटी के बगैर जो है ना थोड़ा सा, देखिए हमने ओवर द इयर्स ये देखा है कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जब आपका चेयरमैन है वो इतने साल के लिए, देखें बड़ी छोटी सी एग्जांपल है कि कैप्टन, पहले तो हमारे टाइम पे तो सीरीज़ टू सीरीज़ चलता था,
वो क्यों चलता था सीरीज टू सीरीज? आज तक हम लोगों ने क्यों नहीं ऐसा कैप्टन अनाउंस किया जिसको हम बोले कि अगला वर्ल्ड कप तक यही हमारा कैप्टन है? हम अगर बेहतरी लानी है तो वो इस तरह आ सकती है इन चीज़ों पे। मतलब एक मैच हार जीत हार वो खेल का हिस्सा है। कभी आप बड़े क्लोज गेम्स जीतेंगे, कभी आप बहुत क्लोज गेम्स हारेंगे। भैया आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन जब आप बीच में से कैसे सैक हो सकते हैं लोग? being the leader, Okay, so keep that, hold that thought. Okay, hold that thought. Because we have Suhail Nahid का सवाल है. Suhail Nahid कह रहे हैं, this was schoolboy cricket that was displayed by Pakistan. What are all the people in management doing with the team? ठीक है ना, उन्होंने खास तौर पे सकलैन का और ये मैथ्यू हेडन का रखा. What is सकलैन and Hayden's role in the team? Somebody explain to me. So देखिए, मेरा ये है कि अगर आपने मैथ्यू हेडन को टूर पे बुला के कहना है जी कि वो कोई जादू की छड़ी लेकर आएगा और वो चीजें बदल देगा, तो ऐसा नहीं होता. अगर आप समझते हैं कि मैथ्यू हेडन इज गुड फॉर द टीम एंड ही कैन मेक अ डिफरेंस, इज एन ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी ला सकता है, देन ही शुड कम हियर एंड वर्क ड्यूरिंग द ऑफ सीजन और वर्क ड्यूरिंग द टूर या बड़े टूर्नामेंट से पहले जो आपके जो कैंप्स लगते हैं, महीने का 2 महीने का, जो आपकी प्रेपरेशन होती है सर्टेन कंडीशंस के लिए, वहां पे बुलाएंगे तो फायदा होगा. तो वो तो अभी तक पाकिस्तान नहीं आया ना. यू जस्ट मीट हिम देयर, वो आता है जी, अच्छा जी आज एक दिन हुआ है, तो ही कांट डू एनीथिंग, यू नो. ही कैन यस गिव यू गुड पैप टॉक्स जरूर दे देंगे, बट व्हेन यू टॉक अबाउट वर्किंग विद देम, विद द प्लेयर्स एंड चेंजिंग देयर माइंडसेट, दैट नीड्स लॉन्ग टाइम. ही रेज्ड सिमिलर पॉइंट व्हाट यू हैव बीन डिस्कसिंग, ये स्ट्राइक रेट वाली बात. मैथ्यू हेडन ने जब हम लोग यूएई में वर्ल्ड कप खेल रहे थे, वर्ल्ड T20, तो उसने ये बात जरूर सामने रखी थी, लेकिन उसने कहा था कि यू गाइज आर फेमिलियर विद द कंडीशंस व्हाइल प्लेइंग इन द सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली यूएई में. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बट मुझे लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए. लेकिन उसने कहा कि यू हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ सक्सेस, जैसे आप लोग खेल रहे हो तो वो थोड़ा सा चुप हो गया. तो जैसे आपने कहा कि अगर आपको सक्सेस चाहिए ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, फिर आपको रोल देना पड़ेगा. I got to have a lot of questions. One comment. मेरी बड़ी दुआ है कि हम क्वालिफाई करें और हम आगे जाएं. हमको somehow, I don't know how, but somehow अगर ऐसा हो तो it'll be very good. लेकिन it is a big eye opener. अगर अभी भी नहीं किसी को समझ आएगी, या चेयरमैन हो या CEO हो, जो भी पोस्ट पे बैठे हुए हैं करता धरता, अगर अभी भी नहीं समझ आएगी, और जो मैंने बातें की हुई अभी भी अगर आपको नहीं समझ आएंगी, then there is something wrong with you. अदनान मलिक साहब का सवाल है, we have seen in PSL that the dugout is involved in changing strategies during the match based on the match situation, sending messages, often using number cards. If the captain can't use his head in the game, why can't we deploy this and run the game from the dugout? Yeah, rightly said. आप कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें. आई डोंट नो वेदर दे आर डूइंग इट और नॉट. नॉर्मली आप करते हैं, कहीं ना कहीं मैसेज की ज़रूरत होती है, कप्तान को भी हेल्प की ज़रूरत होती है अंदर. तो आई थिंक बाहर बैठने का मकसद ही यही होता है कि आप देख रहे होते हैं मैच को, तो कहीं ना कहीं अगर अंदर समझ नहीं आ रही तो आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं. लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट ऑब्वियसली दैट इज हेल्पफुल. उसके लिए कप्तान और कोच की वाइब्स मिलना बहुत जरूरी होते हैं. जो आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत जरूरी होता है. क्योंकि मैं अगर कहूँ जी, ये जी 6 नंबर कार्ड दिखा रहा हूँ, फलाना बॉलर लगा दो, एंड ही इज थिंकिंग डिफरेंटली, एंड देन द ईगोज कम इनटू प्ले. देयर आर सो मेनी इश्यूज उसमें आ जाते हैं. सो उसके लिए ये जो आपकी, कि अगर सपोजिंगली कोच कोई बात करता है और वो गलत हो जाती है, बट दैट डजंट मीन कि यू जस्ट गेट आउट ऑफ द उस ट्रस्ट के जो सर्कल है उसमें से आप बाहर निकल जाएं. इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डेवलप दैट, सो जस्ट गॉट टू रियली डेवलप दैट सर्कल ऑफ ट्रस्ट. ऑलराइट, ताहा अवान का सवाल है और वो सवाल सारे पैनलिस्ट से कर रहे हैं. टू ऑल द पैनलिस्ट, माय क्वेश्चन इज, समबडी नीड्स टू बी held accountable for this situation, and why can we not be transparent about how we run the affairs of the Pakistani cricket? We, the fans, deserve a better team and a better management at the Pakistan Cricket Board. आपने comments मांगे थे ना, फिर यही होगा, फिर ऐसे ही होगा. I'm fine with it. I think it's very good. I honestly feel it's very good. Right. I think हर चीज, sorry. I think जो हमारे डायरेक्टर क्रिकेट हैं, he must come out
and explain that. I'm not in a position to explain it, but I'm happy that somebody's asked this question, and I'm happy to say this, that it's a job of director cricket, जो कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ा फिगर होता है, जो bridge between the cricket board and the players and the captain, all of that, जो responsible होता है बंदा, इससे director cricket होते हैं. And then he's got to come out and have a press conference and explain it, why this happened. Okay, look, here's the problem. Talk to the management on over there, and before going to this, so just have a collective sort of a comment. Okay, look, so I'm getting a lot of these messages. Sure. आपने वो comments वाला बोला था, आप लोग खुद ही hashtag देख लीजिएगा. बहुत सख्त गुस्सा है, बहुत सख्त नाराज़गी है लोगों के अंदर, वाज़े तौर पे बहुत मुश्किल है. मैं वो स्कैन नहीं कर पा रहा, चूँकि एक तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आज सवालात और ये कमेंट्स, और बहुत सारे जो हैं वो गुस्से से भरे हुए हैं. सो आई थिंक आई डोंट वांट टू एग्रीवेट द सिचुएशन एनी फर्दर. आई एम एज डिसअपॉइंटेड लाइक एनी अदर क्रिकेट फैन एंड ऑल ऑफ दीज गाइज ओवर हियर एज वेल एंड एवरीबडी इन द स्टूडियो, बट यू नो वी स्टिल हैव द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप टू गो. और मे बी हम शायद क्वालिफाई ना कर सकें सेमीफाइनल के लिए, नो प्रॉब्लम, बट लेट्स होप कि हम बाकी मैचेस जो हैं वो बेहतर तरीके से खेल सकें और एक पॉजिटिव नोट के साथ जो है वो वापस आएँ. और अल्लाह करे कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि हम लोग क्वालिफाई करके आगे चले जाएं. लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है कि क्या हमने ऐसे ही क्वालिफाई करना है कि आए जी सब लोग मिलकर दुआ करते हैं, दुआओं के ऊपर क्वालिफाई करना है. अच्छा जी, वो अर्जेंटीना ब्राज़ील से जीत जाए और फ्रांस जो है वो यूक्रेन चली जाए और यूक्रेन रशिया से जीत जाए तो फिर पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में चला जाएगा. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक वी नीड टू प्योरली विन ऑन गुड क्रिकेट and then move forward in tournaments. And with that, कल के जो मैचेस हैं उनके बारे में जरा देख लेते हैं. कल ये दो मैचेस आपकी खिदमत में आ रहे हैं. We're going back to Group 1. Match number 25. It's Afghanistan clashing with Ireland. This is going to be a cracker of a game. Definitely this would be a great game. और दूसरा मैच जो है कल आपका वो है Group 1 का. This is Australia versus England in Melbourne. This is going to be a big game. This is going to be really worth watching. बिग गेम क्या 40 ओवर का मैच है. बिग गेम है. 20 एक ने करने, 20 दूसरे ने करने. 40 मुझे लगता है 80 का होगा. 80 का होगा. होगा लेकिन मजेदार. हाँ होगा, जबरदस्त. जैसा भी होगा, it would be really really good. Waqar, looking forward to it. Your team clashing with England. Yeah, it should be a really good game because I have seen glimpse of the Aussies in the last match, and I've seen England, you know, being in trouble in the last match. So they're under pressure, definitely. They're under big time pressure because if they lose that game, they'll be in the same boat behind us. Yeah. The boat that takes you back home. And it's leaking. It's leaking as well, Yeah, very fast. 100%. Good point. That's a good one. That's a good one. All right, gentlemen. Thank you very much. We are going to be back here tomorrow morning, so get some rest. It's another day here at the ICC Men's T20 World Cup. Thank you, Misbah. Thank you, Waqar. Thank you, Shoaib. And hopefully we'll have the great Wasim Akram joining us tomorrow morning. Till then, take care. I hope so too. Yeah, we're missing him. आज तो उनका होना बड़ा बनता था. आज तो वसीम का होना बड़ा बनता था इस वक्त. उनसे कल पूछ But don't worry, ये कल भी इस पे सोचे discussion उन्होंने है. हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इतनी बातें की, अगर यहाँ होते तो क्या होता. सोचेंगे कि अगर आप सारी बातें टीवी पे ना कह दिया करें तो बेहतर नहीं होगा. हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बता दिए. लोग सोच रहे हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हो रहा है. आप ब्रेक में क्या होता है वीडियो बना के दिखाते हैं. मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लेकिन बातें नहीं बताई. मैंने व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बातें नहीं बताई. I appreciate it. Yeah, well, Wasim is super happy to see today's games. A little disappointed with Pakistan, but he is still very positive. He believes that this is a team that can do really well. He's very proud of the boys. This was the message he wanted me to give. Not. I'm just kidding. But he'll come here tomorrow and he'll speak for himself. With that, we are going to sign off tonight. Thank you very much for joining us here in the Pavilion. We will be back tomorrow morning with the two big games. Till then, take care of yourselves and don't be too upset, Pakistani fans. Tomorrow is another day. We will see you tomorrow morning. Good night, everyone.